Everyone, thank you very much for coming on a Sunday night at 11 or 11:30 p.m. So since you guys are here, I know कि तुम लोग काफ़ी serious हो about whatever is coming for you now. That is your placement season, and so we'll just take a quick poll of a few things so that we know what kind of audience we're dealing with here. That makes our work easier. Okay. So how many of you guys are not doing any internship in this particular vacation? Just raise your hand quickly. Okay. Cool. And I'm hoping you guys have an ITR or something. Okay, you can get your hands down then. So now how many of you guys are doing an offline internship during your vacation? Okay. three- Okay, that's a lot of people, honestly. Right. And how many of you guys are doing a remote internship in your summer vacation? Okay, okay, okay. ठीक है. So देखो accordingly we'll categorize all of these things into different for different audience. We'll talk about different things. Okay, so I'll start with the basics first of how you should deal with this entire preparation trajectory according to whatever is happening with you, because I cannot generalize it. Some people might have 10 hours in a day, some people have 3 hours in a day. So we are accordingly going to talk about preparation also. So firstly, for the people who are not doing any internship, okay, so I'm assuming तुमने कोई तो internship करी है for IT or something, so you have something in hand already in the CV at least, right? So you guys are in the best position possible right now because तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है और कुछ काम नहीं है, ठीक है? So you guys have a lot of time to do DSA in an in-depth manner compared to other people that you'll be competing with, or okay, whatever it is. That's the harsh truth. Okay, so you are in a very comfortable position, so you don't really have much to worry about. Now let's come to the people who are doing the offline internship. Right now, offline can be of two types. The first type is जिन्होंने on campus निकाली है. I'm assuming on campus निकाली, so they have gotten a decent offer on campus, right? So if you're looking forward for that particular conversion into that company, right? I'll tell you two or three things so that you are well aware what happens in these scenarios. Okay. Now, conversion does depend on your performance, but it also depends on the requirement of the company. So you cannot always be like मैं पक्का convert हो ही जाऊँगा. There is a chance that you might not get converted. That is the truth. Okay. So you have to give your particular hours, whatever the company is asking for, to the company. Okay. But at the same time, you'll have to keep your personal goals in aligned also. Because if you don't do that, right, then अगर मान लो convert नहीं किया, now you will be in the worst position possible because तुमने पढ़ाई करी नहीं होगी एंड तुम्हें इंटर्नशिप में कन्वर्ट किया नहीं एंड देन यू विल बी ऑफ नो वेयर. ओके, सो वॉट एवर कंपनी, मैं तो बोल रहा तुम्हें खुद की कंपनी भी है ना, तब भी यू कैन नॉट गारंटी कि समवन विल गेट कन्वर्टेड बिकॉज द मार्केट इज सो बैड राइट नाउ. वी कैन नॉट से कि तुम पक्का कन्वर्ट हो जाओगे. इवन योर मैनेजर वुड नॉट से even before the end of your internship. Okay, so please keep that in mind in case you are too overconfident. I'm just giving you a heads up here. Okay, now apart from this, ना मान लो कि तुम कन्वर्ट हो गए तो इट्स ऑल गुड, फिर तो कोई टेंशन नहीं है. बट अगर तुम कन्वर्ट नहीं हुए या हुए तुम्हें इसका रिजल्ट ही नहीं आया, नाउ दिस हैपेंस इन द प्लेसमेंट सीजन अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो व्हाट हैपेंस टिल द टाइम द कंपनी डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन वेदर तुम कन्वर्ट हुए या नहीं हुए, तब तक यू माइट नॉट बी एबल टू सिट फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. सो यू हैव टू हैव ऑल द प्रिपरेशन इन योर आर्सनल रेडी. So the moment you are able to sit for a company, you have to crack it. That should be your mindset. Don't get demoralized then कि यार मेरे को तो बैठने नहीं दे रहे हैं and all of that shit, because the thing is it's a high risk high reward. ठीक है, convert होगा तो placement में ही नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है, नहीं हुए तो बैठना पड़ेगा. So it's a high risk and high reward situation. तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. Some people lose out on some companies in this entire scenario, but I think that's worth the struggle if the result is good here. Okay, so तुम्हारा situation ये रहता है. Now the people who are doing online internship, right? So online internship is also a very good spot to be in because you're getting dev experience. At the same time, you can do a lot of other work also. Okay, just restrict your work hours and communicate that to your superior in the company also, that I'll be working from this to this time. Okay, because I had done so. I also did a remote internship before placements. Okay, and that is what I did. I strictly conveyed that I'll be available from this time to this time, and I did my work. Okay, but at the same time, I was preparing for other stuff. Now, if you're gotten in off campus, you might want a conversion, you might not want a conversion. But let me tell you something, that even if you don't want the conversion, मान लो वो 5 लाख 6 लाख 7 लाख whatever they are giving, right? Don't be the person जो हर चीज़ रिजेक्ट कर रहा है बिकॉज पैसा कम है वहाँ पे. Okay, because this might be the only offer you are left with, or this might be the backup offer you are left with. So there is no harm in getting an offer off campus, right? कौन सा तुम्हें कोई इफेक्ट पड़ जाएगा उस चीज़ से. So don't deny, just because you think that you are worth 20-30 lakhs does not mean that you don't take a off campus offer of 10 lakhs, right? That does not make sense. So at least you have a backup offer there.
Okay, so that is what I'm trying to tell you, that all of these things matter. Even if you're doing internship anywhere and there's a scope of conversion, try to get converted so that you enter the placement season in a confident way. And you know the best part about this thing is, if you get a conversion offer of 10 lakhs, for instance, from an off-campus company, now you know you don't have to sit below or at that level in the placement season. तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ से बैठना शुरू करना है, ठीक है. Now you're not going to sit for 8 7 6 because you already have 10, right? So that is the mentality shift that comes. तो अगर तुम्हें पता है you have something in hand, right? That's the highest amount of confidence a person can have then. Okay, because तुम्हें unemployed होने का डर नहीं होता है, बस तुम्हें strive to better वाला scene रहता है, which is much better than all of that thinking कि मेरी job नहीं लगेगी and all that. Okay, so these are the three major audience वाली जो चीज़ है जो होती है. Okay, इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो, ठीक है. इन तीनों सिनेरियो में से तुम कहीं भी अगर फॉल करते हो एंड यू हैव क्वेश्चंस कि नहीं, व्हाट शुड आई डू विद द इंटर्नशिप, शुड आई वर्क, शुड आई नॉट, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस पूछ लो, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट. दिस विल डिसाइड कि हाउ मच टाइम यू हैव इन अ डे. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है हाथ रेस कर दो, चैट पे लिख दो, बोल दो, एनीथिंग. Cool, then I'm assuming you have no questions. Then let's go ahead with the preparation thing now. So if I had to broadly classify your preparation, then you guys can start writing notes now. अभी काम की बात होगी. Okay. So broadly your preparation will be divided into data structures and algorithms. That will be the first and the foremost thing you'll be focusing on. ओके, सो दैट उसको एक कैटेगरी बना के, एक बॉक्स बना के लिख लो कि यार ये मेरे को करना होगा अगर, ठीक है. कोई भी बना लो एक अच्छा सा नोट्स ताकि सबको मिल जाए. ओके, देन द सेकंड थिंग विल बी योर CS फंडामेंटल्स, जिसमें तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इन टू दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन. देन कम्स योर एप्टीट्यूड इज समथिंग जो नॉर्मली नेग्लेक्टेड रहता है काफ़ी ज़्यादा. Okay, people don't really focus on aptitude, but let me tell you that a lot of companies in their OTs are going to have aptitude questions. Okay, and it becomes the tiebreaker a lot of times, right? Like even in the company I got into, I solved 1.25 1.5 coding questions. So a lot of people did that. Okay, किसी का एक टेस्ट केस, दो टेस्ट का, इक्वल टेस्ट केसेस भी चलते हैं. Now the only deciding factor was the MCQs there. Because MCQs, coding questions might carry 10 points, but if everyone gets those 10 points, then the only deciding factor is the MCQs, right? So this is where you need to put some effort into aptitude also. I personally did not do that and I got off easy in that particular area, but I don't think it's very easy to get away from that because every company, fintech companies are asking apti, right? And if you are the person who does not want to get into coding, that's absolutely fine. I want to get into data analysis, or not if not into coding at all, and you want to get into business analyst, otherwise some non-tech roles like in ZS associates and all of that, aptitude is everything in that. All they ask is aptitude and case studies and all that. So if you are the consulting person who has the consulting mindset, right, be prepared for case studies जो आती है तुम्हें उसे रिजॉल्व करना होता है, एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं, मेंटल एबिलिटी के एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है. मैथ्स बेसिकली जो काफ़ी आती है ना, कि बोट इतनी स्पीड से गिर रही है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ऑल ऑफ दैट, दोज ओलंपियाड थिंग्स, ऑल ऑफ दिस कम बैक टू यू इन प्लेसमेंट. Okay, so I would recommend to be prepared for it. But if you are aiming in the coding domain, this is your last priority, I would say. But if you are in the non-tech domain, this should be your 1 or 2 priority. P0 or P1, this is your P0 or P1. Cool. So this is how we'll broadly classify your preparation tactics here. Cool. Now I'll just share my screen now so that we know क्या क्या topics हमें क्या क्या तरह से करने पड़ेंगे. Cool. So just 1 second. Yeah, just give me a thumbs up if my screen is visible. Everyone, anyone, कोई बता दो यार. Visible? Yeah, perfect. Thank you so much. Cool. So अभी now people who already know me, I might have told you this a number of times already. So there's nothing much going to be different in the way you prepare for this thing, but just a refresher for you guys. Okay. So देखो तुम्हारे पास 2 महीने हैं. ओके, यू हैव 2 to 2.5 months. दैट इज इनफ फॉर यू. अगर तुम, मैं मान रहा हूँ, दिन के 5 क्वेश्चन भी कर रहे हो, सो दैट्स लाइक 150 क्वेश्चन अ मंथ, 300-350 क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन. एंड दैट इज व्हाट आई फील इज अ डिसेंट target to get an overall understanding of all data structures and algorithms which are there. Okay, so in my opinion, the target should be around 300-350. I am not saying that you cannot get shit done in 100 questions or 50 questions. People do that, but those people are like extremely smart, or you can say that these guys have too much dev experience, so it's not a very big deal for them to do DSA. But I am assuming from my perspective that you are a person
who did not do a lot of coding till now, and you are trying to prepare for placements. So in that way, you will need to start from easy and then medium and hard. Some people directly jump to medium and start, so they don't need to do a lot of questions. Okay, so there is a quantity versus quality thing that is always there. So the middle ground I feel is 300 to 350. That will be the middle ground for you. Okay, so yeah, just a second. I think what did these guys do with this? Yeah, okay. It is a sheet. Yeah. So I think this is the number one sheet I would recommend to anyone who is trying to do DSA. Like, let me tell you something. Like in the interview room, when I sat in my placement, right? Every person that came in that interview that day, and I overheard people talking. They were like, "हाँ भाई मैंने तो किया था, Shriver ने ये पढ़ाया था, मैंने Shriver से कर लिया था, हो गया था क्वेश्चन इंटरव्यू में." So I realized that day that what I have done is not something great कि मैंने Shriver sheet solve करी है. What I have done is the bare minimum to compete with the people who are in my batch right now. Okay, so you should not look at people जो तुम्हें randomly दिख रहे कि अरे कोडिंग नहीं करता, कोई पढ़ाई नहीं करता. These people, right, they'll show up in on your interview day and they would have done exactly more or less, a little more or less to your preparation. So if you feel कि भाई मणिपाल में लोग पढ़ते नहीं है, बस पार्टी करते रहते, that is the worst notion you can have. सब पढ़ते हैं और 2 महीने में तो कोई ऐसा जोश आता है कि सब कुछ अलग ही पढ़ाई करके वापस आते हैं. Okay, so I want you to keep that in mind कि कोई यहाँ पे ऐसे ही फालतू नहीं है. Everyone can get shit done. Okay, so yeah, just a second. Yeah, cool. So firstly, ना अब थोड़ा नोट डाउन करना शुरू करना टॉपिक के नाम, ठीक है. सो इवन इफ़ यू आर वेरी गुड एट कोडिंग और तुमने बहुत डीएसए पहले किया है, आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद एरेस. ओके, बिकॉज इससे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तुम्हारे, आई थिंक बाकी कोई डेटा स्ट्रक्चर से क्लियर नहीं होते. एंड एरेज एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह आएगी. ग्रीडी डीपी एवरीवेयर इट इज़ गोइंग टू कम एंड नच यू. ओके, बिफोर दिस, द लैंग्वेज थिंग. नाउ हियर मी आउट वेरी केयरफुली. There are 3 languages that usually people code DSA in. Okay, that's C++, Java, and Python. Okay, now a lot of you might be inclined towards Python, thinking it's easy and etc. etc. But let me tell you that it's better if you stick to C++ or Java in your placement preparation, because I know problems that come up with Python in industry. Python is not being so vastly used that the person taking your interview might know Python. There is a high chance they may not be very proficient in Python. So whatever you are explaining is white noise to him. You need to understand that. Okay. Yeah, Darshan, पूछो जल्दी से. Anything? Nothing? Cool. So that is the thing I'm trying to say. कि Python is a bad option in terms of DSA. I'm only talking about DSA here. So I would recommend you to go for C++ or Java. If you are a person जिसको दोनों नहीं आती, I would recommend you go for C++, because C++ has a easier syntax compared to Java in my opinion. Okay, but if you are a person जो school से Java करते आ रहा है, you will do just fine with Java also. Okay, so that's about the language thing. This is very very important. Okay, now I'll be giving you certain timelines which is according to me should work out for you. अगर तुम decently coding भी करते हो, so you will be able to do that. Cool. So um, yeah. So for instance, you have this arrays के 14 questions that are present here, right? So if you are a person जिसने कभी arrays नहीं किया है, ठीक है, कभी भी arrays नहीं किया है, I would recommend you to take around 3 days max to complete this particular easy section. But if you are a person जिसने coding करी है पहले, 2 days should be the maximum that you should give to the arrays section. Okay, and I hope someone is noting down. Anyone who is noting down can, because मैं note down कर नहीं पा रहा हूँ अभी, ठीक है. क्या कोई appoint कर देगा किसी को? Hold on. कोई anyone is here जो कर सकता है? Shaleen, anyone? ये तो आया है क्या लैपटॉप से? Are you in a situation where you can note down stuff? Ananya, Shaleen, Ayush, anyone? जल्दी से बता दो यार. If anyone can note down, that will be great, because that's why. Phone, okay. What about Ayush? Ayush, तुम कर सकते हो? Because these guys are on phone, so they will not be able to note down, right? Can? Okay, thank you Ayush. यार तू कर दे note down, ठीक है, whatever I'm saying with the timeline for experience slash very new to coding. Okay, so firstly I was talking about arrays easy questions from the Shriver sheet itself, right? For people who are new to coding, 3 days. For people who have done coding before, 2 days. That should be the maximum that you should do, right? And you guys can maintain a spreadsheet where you guys are putting whatever questions you are doing in a day to know what your peers are doing, as well as there's a little competition or little motivation coming from other people doing stuff, right? And then you can jump to medium questions here. Okay, now you might think कि यार ये Shriver तो sheet बना के चला गया, इसका point क्या है? I'll tell you that. So as you can see, this particular question, this was मेरे एक senior के interview, third interview round का question था एक company में.
like 25 30 lakh package company, right? To some problem, to almost any interview they a lot of times they ask that question. Cadence algorithm, very famous question in OTs में बहुत ज़्यादा आता है question, right? Stock buy and sell Cisco में पूछा गया था लोगों से. Okay, so I'm trying, that's what I'm trying to set matrix zeros is Microsoft का question. ठीक है, spiral manner is again Microsoft के round 2 का question. So all of these questions, right, they are not just placed randomly here. There's a particular value that is attached to it, and if you do whatever I'm telling you right now, there's a high chance कि सारे question तुम्हें इसी sheet से आएंगे. I did not complete graphs from this sheet, okay? And the question I got in my interview was new to me. But the moment I came back and opened this sheet, that question was present in the sheet. It was just that I did not put the effort to do that question, right? So that is the mistake I don't want you guys to make, okay? So in the same for the medium section, it will take 3 days for easy new people and 2 days for the experienced people, I would say. Okay, and we'll be skipping hard for now. I'll tell you when to do hard because लोग I know people जो 3-4 महीने सिर्फ array करे जा रहे. It's an endless loop. You should not get stuck there. Okay, then we'll be skipping through binary search and strings here. We'll go to linked list. Now linked list is very important in terms of interview. I've hardly seen questions in OTs, 1 or 2 OTs only, but this is a question that is asked a lot of times in interviews, reverse a linked list and a lot of other questions also. So this is extremely important, I would say. So focus up. For लिंक लिस्ट के जो पहले 3 सेक्शन है ना, डबली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट एंड मीडियम प्रॉब्लम्स ऑफ लिंक लिस्ट, all of these 3 things, I think you should overall be giving a total of 5 days in my opinion. Okay, and to learn this particular topic, Loveover, you know Loveover, right? So if you are not understanding from Striver, this guy has taught linked list in such a beautiful manner, you'll like how it's teaching. Okay, so I'll just show you the playlist also here. सो इधर अगर तुम जाओगे नीचे की तरफ, हाँ, बाय द वे, इफ़ यू डोंट नो STL एट ऑल, यू कैन लर्न C++ STL फ्रॉम दिस वीडियो, अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है. ओके, एंड देन I'll just show the linked list part also to you. 1 second. Yeah. So as you can see, तो तुम्हें अगर linked list बिल्कुल भी नहीं आता ना, this guy has taught it in such simplicity that you will be able to understand it. ओके, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो भी आधे से ज़्यादा तुम्हारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इन 3 वीडियोस में, जो मैंने तुम्हें अभी बताया ना 5 days. 5 days is a lot that I am saying for it, but I wanted to learn it properly and I wanted to you to learn it once and properly. Okay, so ये detect and remove loop in a linked list, this was my question in Cisco का interview. मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. तो तुम यहाँ से यू कैन डू द लर्निंग एंड यहाँ से यू कैन डू द क्वेश्चन. Okay, so I'm mapping all resources to questions for you, and if you follow it, you'll be good to go. Okay, now you are done with linked list, you're done with arrays. Now the thing is that a topic that is not there in Striver sheet is hashing, and it is extremely important to solve questions of arrays and strings as well as sliding window also. 1 second. Yeah, yeah. Okay, so I'll be showing that section to you here. 1 second. Yeah, so this is the hashing section. Okay, and you can give 3 days to do this particular section. This will help you get an understanding of unordered ordered maps, okay, ordered set and all of that, as well as help you solve any question of arrays and strings. Okay, because the thing is, a lot of times any question that you get, right, it might be O of n square that you are solving, but to convert it into OF in the easiest way might be hashing. Okay, so that is the good part about knowing hashing, कि तुम ये सारी चीज़ें कर पाओगे. Correct. So that is what I want you to learn here. Hashing is something you should not skip at all, because if you don't do this, you will not be able to do sliding window in the future, as well as heaps में भी इसका काफ़ी usage आता है, right? So Ayush, I'm hoping you are noting, and other people also are noting here, that this is extremely important. Now if you don't know how to use unordered maps and sets and all of that, you can just do a simple YouTube search about what those things are. And honestly, this is all on the go learning. Like even I did not understand this a lot of times, but जैसे तुम question करते जाओगे, you'll get a better understanding of it. But you'll have to sit and learn it properly, and for once you have to learn it properly. Because you don't have understanding of it, right, you might end up in segmentation fault and all of those things also. So get a good understanding properly, and then you can try solving questions from this particular sheet. Okay, and this is must do coding questions by GFG. This is also a very good sheet, but there is a reason I'm not telling you कि तुम ये sheet करो instead of Striver, because इसमें कुछ important questions missing है. So I'll be guiding you कहाँ पे क्या करना है अभी. Okay, so now you're done with this, so you are in a position now. What do you know right now? I'll tell you. So you know array, you know English, you know string, right? I have not seen companies offering 8 to 10 lakhs go beyond this till now.
Like I have seen my friends sitting for various companies. I have heard interview experience of 20, 30, 40 interviews on campus, right? Majorly they were asking linked list, arrays, hashing only. That is what they were restricted to. Because anything that you go beyond that is something, if the person has not learned that concept alag se na, he'll not be able to answer. But array string, all of these things, they assume कि तुमने अगर नहीं भी पढ़ा है ना, so your basic understanding of CS, you should be able to solve it. बट आई डोंट वांट यू गाइस टू गो ऐसे मैनर में कि तुम बस वो एक्सपेक्ट करें कि तुम्हें आना चाहिए. यू शुड लर्न सो दैट तुम पक्का है कि तुम्हें आता है. ओके, सो इफ़ यू आर अ पर्सन जिसका टारगेट वॉज समवेयर लाइक दैट ओनली कि हाँ भाई 8 से 10 लाख भी मिल जाए चलेगा, एटलीस्ट ये करके जाना. राइट, दिस इज नॉट मच. What did I tell you? Arrays is like 5 days, linked list is like 5 days, hashing is like 3 days. भाई 15 दिन में you can do the DSA that you need to do for those companies, right? But I don't want you to do that and aim only for that. I want you to do much better than that. Okay, so that is the reason we'll be going ahead and solving more topics and more questions here. Okay, but this is the bare minimum that you should do for any interview. For instance, I'll tell you, a good company comes for data analysis, right? They won't ask too much DSA. Their DSA will be restricted to this, whatever I told you. I'm not saying that they won't offer much money. They can offer a lot of money, but their specialization is not software development, so they'll not get so much into DSA also. So ऊपर ऊपर से DSA कोई भी पूछता है तो वो array string hashing से निकल जाएगा तुम्हारा. Understood? So that is why this is important. Any domain you want to get in, you should do this. People who are aiming for non-tech business analyst वगैरह also, you should still do this because ये basic understanding है. आजकल business analyst में SQL पकड़ा देते हैं वो लोग. So there's still a lot of coding that is there in business analyst as well. So if you do this properly, it will make your life easier and it opens up a lot of options for you. मान लो industry खराब है, नहीं आ रही business analyst की company, non-tech companies. Now you have to sit for tech. Then you cannot be कि मैं भाई 15 दिन में बैठ के DSA कर लूँगा. That is not going to happen, right? So I want you to focus up right now instead of then. Okay, so doesn't matter whatever branch you are from, EC, triple E, CSE, doesn't matter. This is something that is common to everyone. Okay, and yeah, okay, yeah, that's good. So now we are done with basic topics here. Now we have to focus on some other topics that are present here. Now sliding window, as you can see, any one of you who is giving lead code contest lately, like for the past 2-3 months का भी lead code contest दिया किसी ने यहाँ पे? Anyone जिसने भी दिया हो हाथ रेस कर दो. कोई है? कोई नहीं दे रहे क्या? पूरे सेमेस्टर नहीं दिए किसी ने? अच्छा दिए है. ओके, थैंक यू, फाइनली कोई है. या साउंड्स गुड. सो तुम लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया होगा यार कि लीड कोड कॉन्टेस्ट में पहला क्वेश्चन बहुत बार स्लाइडिंग विंडो का आ जाता है. अगर तुमने नोटिस किया तो बताओ बताओ जल्दी से. मोस्टली आइदर इट इज़ हीप्स और इट इज़ स्लाइडिंग विंडो, राइट? So that is the pattern that is in OTs also. So a lot of times questions in the OTs are solved through 2 pointers and sliding window. It's a very common, very common thing that is asked in the OTs. तो जिन लोगों को ऐसा टेंशन रहती है कि OT क्लियर नहीं हो रहा, OT इसलिए क्लियर नहीं होता बिकॉज यू आर स्टडिंग द रॉन्ग स्टफ फॉर द रॉन्ग स्टफ, रॉन्ग थिंग, यू आर मैपिंग द रॉन्ग स्टफ. इट्स नॉट कि तुम लिंक लिस्ट पढ़ रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो. इट्स बेवकूफ़ी इफ़ यू आर स्टडिंग लिंक लिस्ट फॉर OTs, दैट इज़ बेवकूफ़ी. ठीक है, यू हैव टू स्टडी लिंक लिस्ट एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये OT में तो नहीं आ रहा है, मैं इसको इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा हूँ, राइट? बट व्हेन यू आर डूइंग स्लाइडिंग विंडो, राइट, देयर एवरीथिंग विल मैटर. स्पीड विल मैटर, एक्यूरेसी विल मैटर, एवरीथिंग विल मैटर बिकॉज OT में तो टाइम लिमिटेड रहने वाला है, राइट? सो उस माइंडसेट से पढ़ना है तुम्हें. भाई OT में घूम फिर के सिर्फ 4 से 5 टॉपिक ही आते हैं. अगर तुम उनको कर लोगे तो OT विल बिकम अ ईजियर थिंग फॉर यू. अगर तुम 1000 चीज़ें कर रहे हो जो कि इंटरव्यू स्पेसिफिक है और OT स्पेसिफिक कुछ नहीं कर रहे हो, सो तुम इंटरव्यू ही नहीं पहुँचोगे. तो हाउ डज ऑल ऑफ दिस थिंग्स हेल्प, राइट? सो you guys gotta keep that in mind. Cool. So now we have sliding window with medium problems here. I would say this guy has done a great job in teaching sliding window in my opinion. Okay, otherwise there is a channel Code with Alicia. She also is very good in teaching sliding window, so it's up completely up to you guys. But I think you can use all of these questions from here, the medium problems here. This is gonna take you 2 days to get the गुड आइडिया ऑफ हाउ स्लाइडिंग विंडो वर्क्स. पूरा प्रॉपर आइडिया लेना कि ये विंडो अगर शिफ्ट हुई तो इतनी ही क्यों शिफ्ट हुई, राइट? अगर वाई वी आर डूइंग -1, वाई वी आर डूइंग +1, वाई आर वी यूजिंग मैप हियर, वाई आर वी यूजिंग सेट हियर. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम, बट यू गाइज हैव टू हैव एन डीप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ ऑल ऑफ दिस स्टफ इज वर्किंग, राइट? बिकॉज ये देखो, ये नाइस सवेरे, गुड सवेरे, ये सब तुम देखोगे कभी कॉन्टेस्ट दोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, करेक्ट? मैक्सिमम पॉइंट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम कार्ड्स, ये भी ऐसे क्वेश्चन OTs में आते हैं, राइट? सो तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. OT के लिए दिस इज द मेजर स्टफ दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड. नाउ हार्ड प्रॉब्लम्स विल लीव फॉर नाउ अगेन बिकॉज इसमें और ज़्यादा दिमाग लगेगा तुम्हारा और तुम्हारे हैशिंग की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. सो हार्ड प्रॉब्लम्स विद द नेक्स्ट इटरेशन व्हेन वी कम बैक. Cool. So now we are done with arrays, linked list,
sliding window, and what else were we done with? Hashing, correct? So we're done with all of this stuff. Now अब आते हैं हम लोग अपने एक और पार्ट पे. आई टोल्ड यू स्लाइडिंग विंडो इज द फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा ओटी में पूछा जाता है. सेकंड थिंग इज ग्रीडी. पर अगर तुमने इंटर्नशिप में लगे और यू गाइस द थर्ड ईयर्स, टेक्निकली फोर्थ ईयर्स नाउ, सो यू गाइस माइट हैव गिवन लॉट ऑफ ओटीज, गोल्डमैन सैक्स एंड डी शो एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो यू माइट हैव नोटिस्ड कि या estimated days from medium 2 pointer and sliding window, 2 days bro, I used 2 days. Okay. And so you might have noticed कि यार क्वेश्चन आते होंगे, what is the minimum cost that you can have to complete this particular trip, right? What is the maximum profit that we can get by selling this particular stuff, right? So ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं ओटीज में, if you have noticed. So एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें मैं. कहीं भी अगर मैक्सिमम और मिनिमम मेंशनड है, either it is greedy or either it is DP. ओके, सो वन यू विल लर्न ग्रीडी एंड डीपी, देन यू विल नो कि ग्रीडी लगाना है, डीपी लगाना है. बिकॉज डीपी में ऐसा होता है कि फ्यूचर में क्या होगा हमें देखना पड़ता है, मतलब आज के डिसीजन से इम्पैक्ट हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट बुलशिट, ठीक है? तो वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज मैक्सिमम मिनिमम से यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या चीज़ यूज़ करनी है. ओके, सो इट्स मोस्टली ग्रीडी और डीपी. तो दिस इज अनदर टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. सो फॉर ग्रीडी आई हैव अ वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड वे फॉर यू टू लर्न. लाइक ग्रीडी तो लेजिट this is the best resource that you can have, and I have also personally used this only. Okay, so I searched that before, right? Correct. 1 second. Yeah, this particular video, भाई भगवान से आई है ये वीडियो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. ये 1.5 घंटे में इसने जो ग्रीडी पढ़ाया, मुझे आज तक ग्रीडी कभी समझ नहीं आया. आई लर्न इट इन 1 month इन माई प्लेसमेंट सीजन एक्चुअली फ्रॉम दिस वीडियो. एक दिन मैं बैठा है एंड वॉच इट कम्प्लीटली. दिस गाय सॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन दिस. ओके, लाइक कम से कम 7-8-9 क्वेश्चन सॉल्व कराएगा ग्रीडी के. ये द मोमेंट यू आर डन विद दिस वीडियो, यू विल कम आउट एज अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन इन ग्रीडी. यू विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन compared to before, right? But I don't want you to stop when you're done with this. Cool. Now you come back here, you come to greedy. You might have solved some of the questions that he solved already here, so that is all good. But now you will be in a much better position to solve. How many are there? 16 questions, right? In my opinion, you should be able to solve 10 questions out of 16 after doing that particular video. इतनी अच्छी वीडियो है वो, ठीक है? This and meetings in one room is my interview question in RCCM. ओके, जंप गेम ये माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन है, फ्रॉग जंप. ओके, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. नाउ यू कैन सी यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ होता है, SJF एंड ऑल दो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, स्पेस रिप्लेसमेंट. दिस विल डीपन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑल्सो. ओके, एंड ये मर्ज इंटरवल्स के तीनों वेरिएशन जो है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत पूछे जाते हैं OTs में, करेक्ट? सो ये तो पूरा जो 16 क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग इट on it so much. Okay, so for people who are beginners in coding, it will greedy overall this particular video that I mentioned plus this greedy ka sheet, easy and medium hard wala, this is going to take you 3 days according to me, because a video is just 3 hours max. Okay, and I'm estimating तुम 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो डेली बैठ के कोडिंग. Okay, and for actually you can keep it 3 days for both, because it is going to take a little bit of time for this thing. So I wish you can write 3 days for greedy from video and these two particular sections. Okay, so far so good, I think. Once you are done with greedy, right, the data structure that is very close to greedy is your heaps. Okay, so if you have heard of priority queue, this is one that saves your life when you get errors where O of n log n है तो उसको n log k चाहिए and all of those things, right? With that is where heaps comes into the picture. ये मैं तुम्हें एक रूल बता रहा हूँ और ये तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी बना देगा आगे जाके कि तुम्हें हीप्स का भी यूज़ करना है, ठीक है? द मोमेंट यू सी इट इज़ आस्किंग कि फाइंड द kth एलिमेंट इन एन एरे. ओके, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम kth एलिमेंट, मैक्सिमम kth एलिमेंट. द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग k समवेयर, राइट, यू नो इसमें हीप यूज़ होने वाला है. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इसमें हीप यूज़ होने वाला है, बिकॉज हीप इज द वन दैट कैन रिस्ट्रिक्ट द सॉर्टिंग टू k एलिमेंट्स. देयर इज नो अदर डेटा स्ट्रक्चर. यू कैन डू इट मैनुअली मे बी, बट देयर इज नो डेटा स्ट्रक्चर एज इट इज. Okay, so that is the first hint कि वहाँ पे heap use होने वाला है. Now when to use max heap, when to use min heap, very simple. If they tell you that kth maximum element चाहिए, you will use the opposite, which is min heap, right? And if they ask you kth minimum element चाहिए, you will use max heap. Okay, just the opposite of whatever they are asking, उसके opposite का heap use करोगे तुम उसमें, right? देखो, तुम्हें बात समझनी पड़ेगी. कोडिंग हर कोई कर सकता है, क्वेश्चंस कोई भी कर सकता है, बट टू गेट सच फंडाज, राइट, कि क्वेश्चन आया एंड तुमने 2 बार क्वेश्चन पढ़ा एंड यू आर लाइक हाँ डेटा स्ट्रक्चर ये लगेगा, एल्गोरिथम ये लगेगा, ये वाला हीप लगेगा एंड यू आर सॉल्विंग इट. दैट इज वेयर यू बीट द कॉम्पिटिशन. दैट इज वेयर यू गेट द हेड स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल दैट यू आर कम्पीटिंग विद.
गेट माई पॉइंट. सो दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन अ बेटर मैनर. क्योंकि टाइपिंग स्पीड से ओटी नहीं क्लियर होता, ठीक है. अंत में तुम टाइपिंग स्पीड तुम्हारी बहुत अच्छी भी है, तुम्हें पता ही नहीं क्या टाइप करना है, व्हाट्स द पॉइंट, ठीक है. सो द फास्टर यू कैन थिंक व्हाट यू नीड टू यूज, राइट, दैट इज हाउ यू विल गेट टू अ बेटर सोल्यूशन. बिकॉज इनिशियली तुम हमेशा ओ ऑफ एन स्क्वायर का ही सोल्यूशन लिखते हो और उसको ऑप्टिमाइज करते हो. बट इन ओटीज यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम. सो तुम्हें इंस्टेंटली ओ ऑफ एन स्क्वायर सोचना है, फिर सोच के विल बी अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करूँ मैं. ओके, मैं हीप यूज़ करूँ, हैशिंग यूज़ करूँ, क्या यूज़ करूँ, ठीक है. उसने किया तो बोला हीप यूज़ करते हैं, उसने फ्रीक्वेंसी बोला हैशिंग यूज़ करते हैं. ऐसे तुम्हारा फंडा बिल्ड होगा जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन करोगे. दैट इज आई विल बी एबल टू थिंक लाइक दैट कि यार हाँ ये पर्टिकुलर डेटा से यूज़ होगा यहाँ पे. कूल. सो हीप्स एक और बहुत, ये तीसरा टॉपिक है जो ओटीज में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. दिस हैज लाइक अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन दी ओटीज अगेन. ओके. सो फॉर हीप्स ऑल्सो आई थिंक लव वुमन ने काफ़ी अच्छा हीप्स पढ़ाया है. इसकी 2-3 वीडियोज़ हैं हीप्स पे. आई थिंक watch it, you'll get a very good understanding of how heaps work. Okay. Learning is completely up to you if you want to do that or not. Okay. And यहाँ पे this pretty much theory जो तुम लोग सीखना चाहो तो सीख सकते हो, but this is not a very good way to learn heaps honestly. So you can skip this if you want learning part, and you can directly go to medium questions. You can solve all of these questions of medium. Yes, 7 questions, right? You can do these questions. It will be very beneficial for you to get a good understanding of heap. Okay. And in hard, yeah, just in hard you can do some of the questions from here. Connect envelopes to minimal cost and find medium from data stream. These two questions are the questions that are asked a lot in the interviews. Cool. So these medium questions and these two questions from the hard. So heaps overall is going to again take you around 3 days. So that should be the estimate for heaps, because I'm assuming तुम पूरा learning करोगे heaps का, and then you will be doing these questions. So it will take you 3 days. Okay. Now we are done with one of the most important topics for the OTs, by the way, interviews aside. Okay. Now let's jump. Do we want to get into recursion right now or not? Is the real question I'm thinking about. Cool. So, okay, let's do one thing. How many of you guys know recursion? Like basic recursion कैसे चलता है? Just give, raise hand. जल्दी से. Okay. ओके, आई थिंक दैट्स अ गुड नंबर, आई वुड से. ठीक है. तो इन केस तुम्हें अगर रिकर्जन थोड़ा भारी पड़ता है, ऑल आई वांट यू टू डू इज, राइट, जस्ट लर्न हाउ फिबोनाची एंड ऑल दोस फैक्टोरियल एंड ऑल दोस शिट वर्क. दैट्स इट. उतना रिकर्जन सीख लो एटलीस्ट, एंड देन यू विल बी गुड टू गो फॉर ट्रीज. बिकॉज ट्रीज क्या है ना, ट्रीज इज नॉट नॉर्मल रिकर्जन जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं. ट्रीज का एक अलग लेवल चल रहा होता है, थिंक कि लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ठीक है. एंड एक बार तुम्हें फंडा समझ आ गया ट्रीज के, ऑल द कोड्स दैट यू राइट विल सीम सिमिलर टू यू. देर इज नॉट मच डिफरेंस इन एक एक लाइन चेंज करके पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाता है, राइट. सो जस्ट वन थिंग, इफ यू आर डन टिल हियर वॉट एवर आई हैव मेंशन टिल नाउ, यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन आई वुड से. एंड ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है ना, इसका कम्युलेटिव आई थिंक 20 days बन रहा होगा अराउंड समथिंग. I used to be able to give a number in the chat, I think, right. So but around this particular thing, right. So if you get done with trees, अब तुम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हो जो अभी मार्केट में इंटरव्यू में सबसे हीटेड चल रहा है. ट्रीज इज द टॉपिक जो बहुत पूछा जा रहा है इंटरव्यूज में. 18 to 19 days, करेक्ट प्रतीक, थैंक्स. सो इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है ट्रीज ना, लाइक मैं जो भी इंटरव्यू जा रहा था ना, मेरे को ट्रीज ही मिल रहा था हर जगह. इतना परेशान हो गया था मैं, ठीक है. तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है. एवरी वन विल बी लाइक भाई ग्राफ करो डीपी करो, बट आई एम टेलिंग यू कि ट्रीज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके. एंड हीप्स के रिकमेंडेड डेज, राइट, या 3 days आई यूज 3 days. यू कैन गिव 3 days फॉर हीप्स. ओके. हाँ, तो अब मैंने तुम्हें बेच दिया है कि ट्रीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. सो आई टेल यू ऑल्सो हाउ टू गेट इट डन. ओके. नाउ देयर 2 kinds ऑफ पीपल, जिनको इंग्लिश में समझ आता है, जिनको हिंदी में समझ आता है. जिनको हिंदी में समझ आता है, ट्रीज लव अवर से कर लो, ये स्टार्टेड इन अ गुड मैनर. जिसको इंग्लिश में समझ आता है अगर अच्छे से, लाइक आई एम नॉट सेइंग तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, आई एम जस्ट सेइंग तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में अच्छी अगर मज़ा नहीं आता है, तो तुम लव अवर से कर सकते हो. वरना यहाँ पे जो उसने ट्रीज पढ़ाया है ना, यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड. ओके. सो विल गो विद बाइनरी ट्रीज फर्स्ट ईयर. ओके. ना बाइनरी ट्रीज के लॉट ऑफ ट्रेवर्सल्स एंड ऑल आर गिवन हियर. ये तो बहुत बेसिक हो जाता है, और दिस विल बिल्ड योर फाउंडेशन फॉर ग्राफ्स ऑल्सो. रिमेंबर दिस, इफ यू डोंट डू ट्रीज प्रॉपरली यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम लर्निंग ग्राफ लेटर. कूल. सो इसमें भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कि प्री ऑर्डर करो, इटरेटिव प्री ऑर्डर करो, इन ऑर्डर इटरेटिव इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर इटरेटिव पोस्ट ऑर्डर. तो अलग अलग तरह से इंटरव्यू में पूछ सकते हैं. सो इट्स वेरी ईजी फॉर देम टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रीज. दैट्स व्हाई दे डू दैट. ओके. And level order traversal is nothing, that's like BFS, right. And whatever other traversals you're doing recursive, that's DFS. तो यहीं पे तुम्हारी डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च की लर्निंग शुरू होती है फॉर ट्रीज. ओके.
then we have medium problems here, all of these problems, right? If you are able to get till here, right, it will be shit easy for you to do get shit this these things also done. Okay, बहुत सिमिलर है, आइडेंटिकल में बस तुम लेफ्ट 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 कर लो, राइट 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 कर लो, चेक कर रहे हो सेम है या नहीं है, ठीक है। तुम्हें हाइट चेक करने आता है, हाइट के फंक्शन को ही कॉल कर रहे हो बस तुम डायमीटर के क्वेश्चन में, ठीक है। लेजिट हाइट बैलेंस्ड है या नहीं है, तेरे को हाइट निकालने आता है, बस तू लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का डिफरेंस चेक करोगे, वन के ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन हैव द सेम कोड। कुल मैक्सिमम पाथ में सिमिलर कि तुम डेप्थ तक जाते हो उसके। आइडेंटिकल आई टोल्ड यू। जिगजैग ट्रेवर्सल, अगर तुम्हें पिछला ट्रेवर्सल इन ऑर्डर वगैरह समझ आ गया, यू विल बी एबल टू डू दिस। ओके, सो दिस स्टफ इज़ वेरी गुड आई वुड से। अगर तुम ये सही से कर लोगे ना, तो तुम कोई भी क्वेश्चन बाइनरी ट्री का अच्छे से कर पाओगे। इतना इंपॉर्टेंस अटैच कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को अभी। ओके, नाउ दिस थिंग, राइट, द हार्ड क्वेश्चंस ऑफ बाइनरी ट्रीज, इधर कुछ क्वेश्चंस है दिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड समथिंग सम क्वेश्चंस आर काइंड ऑफ एन ओवरकिल आई वुड से। Okay, so you do not get demotivated. I would say that you should try to do questions till here, like node distance of k to the node. यहाँ तक children's and property is very important. LCA is important. ये 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर लेना हार्ड के, and the medium questions that I'm talking about here, right? So this is 14 plus 12 questions, right? Yeah, 14 plus 12 is what, 16? Uh, yeah, 14, 26, 26 plus 13. So this is a lot of questions that we are going to do here, 39 questions around, plus तुम वीडियो भी देखने वाले हो. So let's get a good estimate of how many questions you need to do, how much time will it take for you. So I would, best case scenario, if you don't know anything about recursion, it should take you 10 days to do this. बेस्ट केस की, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, तब इतना लग जाएगा, वरना इट शुड बी 1 हफ्ते से 8 दिन फॉर अ पर्सन जिसको डिसेंट कोडिंग आती है, यू विल बी एबल टू गेट थ्रू। तुम्हें पता है ट्री कैसे काम करता है, यू विल बी एबल टू गेट थ्रू। ओके, सो एस्टिमेट कैन बी लाइक 7 to 10 days डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। बट लेट इफ यू आर एमिंग 15 लाख 20 लाख, भाई ट्री तो नहीं स्किप करना है। ट्री इज जस्ट अ टॉपिक यू शुड नेवर एवर स्किप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट बाइनरी ट्रीज फॉर नाउ। नाउ BST, यार BST इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अभी इंटरव्यूज़ में। इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ बीइंग आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो व्हाट माय सजेशन टू यू will be get an understanding of what BST is at least. Okay, so just get these 3 questions done so you know कि BST में ऐसा क्या अलग है बाइनरी ट्री से। Okay, क्योंकि हमारे पास और बड़ी प्रायोरिटीज़ अभी डील करने के लिए, वी आर नॉट गेटिंग इनटू BST राइट नाउ। ओके, बट इफ़ यू हैव टाइम, तुमने जल्दी वो खत्म कर लिया, यू कैन गेट डन विद दिस थिंग ऑल्सो, बट राइट नाउ इट्स जस्ट नॉट द प्रायोरिटी। जस्ट लर्न हाउ टू फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर एंड these 3 questions. Okay, so you'll be able to get through binary search trees in a day or so. Okay, so BST you can write for a day, only the introduction and some easy questions of it, not the complete understanding. That will be coming back later because तुम trees से already इतना exhaust हो जाओगे ना 39 से, that you will not want to do again binary search tree and all of that. Cool. So तुमने इतना कर लिया अगर, तो तुम आराम से बैठ सकते हो यार 20 लाख की कंपनी में, इजी पीजी, इतना डिफिकल्टी नहीं होती है अभी। द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज DP एंड ग्राफ, राइट? सो DP एंड ग्राफ की कंपनी पूछ रही है, सो दे मीन सीरियस बिजनेस। ओके, आइदर दे आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ मनी or their standards are very high. That is the only way, or both, honestly. That is the only way they ask DP and graph these days. Okay, so now you might be thinking we'll go to graphs, but what happens after trees is that there's a lot of exhaustion that comes with the tree recursion and all of that. So what I would suggest is that, in my opinion, you should not go for graphs right after this, because DP is still the topic that dominates right now instead of graphs in interviews. ओके, एंड DP का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मस्त बात DP की है कि DP OT में भी पूछा जाता है, DP इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है? दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं बोला ग्राफ्स OTs में नहीं आता है, तो तुम्हारे जो बाकी 2 टॉपिक है वो DP और ग्राफ ही जो OT में आते हैं नॉर्मली, बट DP का थोड़ा सा ज़्यादा आता है बिकॉज इट इज़ स्टिल डूएबल आई वुड से। पर ग्राफ का कोई ऊट पटांग क्वेश्चन आ गया, सो यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व इट इन दी OT, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वाई, बट DP दैट शुड नॉट बी द केस विद DP आई वुड से, ठीक है? और अभी तक हमने प्रॉपर रिकर्जन नहीं पढ़ा है अभी तक, राइट? अभी हमने रिकर्जन पूरा स्किप किया है काइंड ऑफ, अगर तुम देखोगे, एंड देयर इज अ रीजन, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न रिकर्जन थ्रू मेमोराइजेशन दैट वी डू इन DP। लाइक कोई क्वेश्चन आया ना, आई डोंट वांट यू टू थिंक कि मेरे को इसे DP से करना है, आई वांट टू थिंक तुम मेरे को रिकर्जन से करो। ओके, एंड यू विल बी लर्निंग रिकर्जन विद DP। पीपल से दैट लर्न रिकर्जन बिफोर DP, आई ट्राइड दैट एंड आई फेल्ड एट इट मल्टीपल टाइम्स, but the moment I decided like fuck all of this, I'll start with DP and then we'll see. And the moment Striver starts teaching, he is like सब छोड़ो, रिकर्जन से करते हैं,
then he's like memorization karte hain, then top down and all of those things, tabulation and all of that. That is how I learned recursion. I never learned recursion properly before DP. I learned it with DP, and that is the best way because you can relate to how recursion is working, why we are doing memorization, what is overlapping sub problem. Okay, and then you will be thinking कि okay, अब बस मैं अगर नीचे ऐसे रिकर्जन में जा रहा था, टैबुलेशन में ऐसे ऊपर आऊँगा, तो वो जो इंस्टेंट रिलेशन तुम करोगे ना एक क्वेश्चन में रिकर्जन और टैबुलेशन का, वो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा तुम्हें डीपी की, कोई हरा ही नहीं पाएगा. ओके, सो दैट इज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई वांट यू टू गो विद इनटू अ पर्टिकुलर इंटरव्यू, राइट. सो डीपी का तो यार यू आस्क एनीवन, एवरीवन इज गोइंग टू टेल यू कि यार चुपचाप स्ट्राइवर की डीपी प्लेलिस्ट कर लो, नथिंग बेटर देन दैट, आई एम टेलिंग यू. ओके, मैंने पूरी काइंड ऑफ पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करी है, एंड आई कैन टेल यू दैट इज नॉट अ मच बेटर रिसोर्स देन दिस. ओके, सो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप MCM एंड DP ऑन स्क्वायर्स, इट इज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफिकल्ट, बट अगर तुम कर ही रहे हो तो यार पूरा कर लेना है वुड से. ओके, एंड LIS stocks and all of this very very important, like DP on stocks है ना, तो यू डू अ स्टॉक बाय स्टॉक सेल प्रॉब्लम इन ग्रीडी, बट यहाँ पे उसके बहुत सारे वेरिएशन आएंगे. नाउ व्हेन यू डू दिस राइट, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वाई ग्रीडी स्टॉक सेल का नॉर्मल क्वेश्चन इज ग्रीडी, बट वाई इज दिस DP, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हेन स्टाइवर starts teaching you. एंड इन सब में सेम कोड लगता है, स्मॉल वेरिएशंस. यू विल अंडरस्टैंड अनदर थिंग, if you know a question already, how do you make small tweaks in it to solve a particular question that's given to you, right? You have to always relate to the thick stuff you know. Not, we are not scientists, we are engineers. We don't invent stuff on the go. Okay, we just use whatever knowledge we have and we make it work. That is what we do. Okay, so वैसे ही सोचना है तुम्हें. Okay, so entire this thing of DP, I am assuming कि तुम पूरी playlist की सारी videos देखने वाले हो, सारी पढ़ाई करने वाले हो. 25 to 30 days, not going anywhere. ठीक है, 20 days आई वुड से अगर लगेंगे, इफ यू आर ओनली डूइंग DP, लाइक पूरा तुम DP ही कर रहे हो बैठ के, बट अगर इसके साथ तुम CS फंडामेंटल भी करोगे, आई एम एज्यूमिंग, सो लेट्स गो विद 25 to 30 days फॉर DP. ओके, सो वेयर आर वी राइट नाउ? आयुष गिव अस, टेल अस वेयर आर वी राइट नाउ विद द टाइमलाइंस जितना हमने डिस्कस किया अब तक. आयुष या कोई प्रतीक जो भी बता सकते हो कि हमने कितना टाइम कर दिया है, अभी कितने डेज उड़ा दिए, जल्दी से बता दो. ओके, 47 days राइट. एंड टोटल तुम्हारा वेकेशन कितना है, ये किसी को पता है? ये तो पता होगा, लिख दो जल्दी से. आई एम एज्यूमिंग 60 days राइट, लाइक 2 महीने, 60 days राइट, 60 days करेक्ट. तो अभी जो 13 days बच रहे हैं ना यहाँ पे, दैट इज़ योर ओवरहेड, दैट इज़ योर बैकअप डेज. कि मान लो कभी ऐसा हो गया, तुम्हें छुट्टी हो गई या कुछ इमरजेंसी आ गई या तुम पार्टी में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग दिस 10-12 days इज़ फॉर यू टू मैनेज ऑल ऑफ दैट स्टफ. कि तुम टाइम एक दिन पर कोडिंग कर पा रहे हो, एक दिन नहीं कर पा रहे हो. दिस इज़ योर लास्ट सेफ्टी नेट दैट यू हैव. कूल. सो 54 days ऑन दी हायर. हाँ, तो बस अगर तुम आराम आराम से सब कुछ कर रहे हो तो यू हैव 6 days और अ वीक इन दैट वे. और तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ पे. कूल. सो एज यू कैन सी 2 महीने में डुएबल तो है, थोड़ा मेहनत है बट डुएबल है. ऑल आई एम आस्किंग यू टू पुट इज 5 to 6 hours ऑफ कंटिन्यूस कोडिंग इन अ डे. ठीक है, आई वुडेंट टेल यू कि तुम ये सब चीज़ें करो अगर मैं खुद नहीं करता. ठीक है, मुझे पता है पॉसिबल, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ करने के लिए. एंड आई डिड नॉट इवन डू ऑल ऑफ दिस स्टफ बिफोर प्लेसमेंट सीजन. आई डिड ऑल ऑफ दिस स्टफ बिफोर इंटर्नशिप सीजन. सेकंड ईयर में आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग, एंड दैट इज थर्ड ईयर में आने के पहले, दैट इज व्हेन आई टुक अप दिस थिंग. सो if I can get 200 questions done in 1 month, you can definitely get 300-350 questions done in 2 months. Not a big deal, right? And there is no one you are fighting here for, you're only fighting for yourself. तो यार सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बड़ा कोई इंस्टिंक्ट नहीं होता दुनिया में. सो यू गॉट गेट शिट डन हियर. फुल. सो नाउ यू कैन सी अभी सब कुछ टाइम उड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे टाइम इन DSA, राइट. सो वन टॉपिक दैट विल बी लेफ्ट विद इज ग्राफ्स. Even if I want to accommodate that, it's just not possible to accommodate. ठीक है, it will put undue pressure on you. So for graphs, I'll tell you what you can do later. Like I'm assuming college शुरू हो गया, placement season शुरू हो गया. So now you can come to graphs and at least get learning के कैसे DFS BFS चलता है, problems on BFS DFS, okay, and topo sort यहाँ तक. एंड शॉर्टेस्ट पाथ में खाली 2-3 क्वेश्चंस कर लो कि समझने के लिए हाउ डू डिस्ट्रॉय एंड ऑल वर्क. कूल. तो ये क्वेश्चन तुम मान लो प्लेसमेंट सीजन में आए हो तो वहाँ पर 1 महीना पहले का स्टार्टिंग में कुछ कुछ चल रहा है ना, डेली 3-3 वीडियोस की कर लो. ठीक है, इसकी 3 वीडियो, साइकिल डिटेक्शन 3 वीडियो, और इसके भी सेम चीज़ होती है, सेम कोड्स चलते हैं. तुमने अगर साइकिल डिटेक्शन किया है तो तुम्हें पता रहेगा कि ये 0-1 मैट्रिक्स कैसे करना है. ठीक है, मैट्रिक्स पता है तो सराउंडेड रीजन कर लोगे. ठीक है, फ्लड फिल उसके ऊपर से ही आता है सेम क्वेश्चन. ठीक है, यू कैन स्किप वर्ड लेटर 2 इफ़ यू वांट, इट्स टू
डिफिकल्ट आई वुड से, राइट. एंड बाई पार्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इससे तुम क्या करोगे, 3 या 5 क्वेश्चन अपने प्लेसमेंट सीजन के टाइम पे बोल रहा हूँ मैं, इसको आराम आराम से करते जाओगे, बिकॉज दिस इज नॉट दी फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट एट द एंड. ओके, देयर इज अ चांस इट माइट नॉट बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू एट ऑल ऑल्सो. तो इतना ज़्यादा उस पर वेट अटैच करके फ़ायदा नहीं है. कूल. सो दैट इज़ द रीज़न वी आर डूइंग दिस, बट आई वॉन्टेड टू गेट ग्राफ्स डन एटलीस्ट शॉर्टेस्ट पाथ में डिक्स्ट्रा. इतना कर लेना in the next 15-20 days in your placement season, right? This way you have covered all the topics that are necessary in the placement season. I think we created a PPT also, and let's do a quick check अगर हमने सब कुछ कवर किया है. So we did hashing correct in the starting itself. Linked list for interviews, binary trees I told you very important. We have what, like 10 days for this. Then 2 pointers we are doing with sliding window. Recursion we are doing with DP. BST we have done an introduction to get a basic understanding of it. Sliding window we did with 2 pointers, राइट. डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूरा 1 महीना देके कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट. ग्रीडी तुमने कर लिया लव बबर से और क्वेश्चन से. हीप्स यू हैव डन फ्रॉम लव बबर एंड यू हैव डन क्वेश्चन फ्रॉम दी शीट अगेन, राइट. सर्चिंग सॉर्टिंग सब तुम्हारा एरेज में कवर हो जाएगा. ग्राफ्स यू विल बी डूइंग व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दिस थिंग इन योर ड्यूरिंग अ प्लेसमेंट सीजन, करेक्ट. एंड देन वी आर लेफ्ट विद सम टॉपिक्स, बिट मैनिपुलेशन, बैक ट्रैकिंग एंड एसटीएल स्टैक क्यू. कूल. सो अब बिट मैनिपुलेशन भी पूछा जाता है, बट अगेन दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बिकॉज इसमें थोड़ा बिट्स का खेल वेल आ जाता है. सो यू कैन डू दिस इन व्हेन यू गेट टाइम, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी अगेन. बैक ट्रैकिंग यार, एन क्वींस वगैरह कुछ फेमस प्रॉब्लम्स है, 3-4 प्रॉब्लम्स है बैक ट्रैकिंग का, बस जस्ट लर्न देम आई वुड से. ऐसा नहीं है कि तुम कोड इन्वेंट कर पाओगे उसका. तो वही 4 क्वेश्चन है इसमें बैक ट्रैकिंग के, जस्ट डू दोज आई वुड से, ठीक है. या एच डी शीट्स ड्राइवर की उसमें मिल जाएंगे. नाउ स्टैक्स एंड क्यू, राइट. स्टैक्स एंड क्यू, देयर इज नथिंग मच मेजर दैट इज आस्क्ड दीज डेज. लाइक वही एस्ट्रॉइड कोलिजन, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, यही सारे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना. I'll just show 1 second. Priya, you want to ask something? Otherwise, ऐसे ही हाथ raised है. So, yeah, stack में, right? I don't want you to do a lot of stuff. तुम्हें पता है ना, postfix, prefix, infix ये सब सुना होगा कभी ज़िंदगी में. किसने किसने सुना है, एक बार हाथ raise कर दो. Stack में postfix, expression, prefix सुना है, right? Perfect. So ये चीज़ें इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं कि यार प्रीफिक्स लिख के दिखाओ, पोस्टफिक्स लिख के दिखाओ, टाइम पास करना होता है तो पूछ लेते हैं. तो बेटर टू नो, आई वुड से गुड टू नो स्टफ, ठीक है. तो ये अब हम उस मोमेंट पे आ गए कि तुमने सब कर लिया, अब तुम रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि तुमसे कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया, क्या करोगे. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि तुम थोड़ा सा वो कर लेना, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग. आई एम नॉट सेइंग कि ये क्वेश्चंस करो बैठ के, जस्ट गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, राइट. यहाँ पे जो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट, नेक्स्ट मॉडल एलिमेंट, ट्रैपिंग रेन वाटर है ना, ये करने हैं तुम्हें, ठीक है. ये 4-5 क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको नहीं छोड़ना, ठीक है. दिस ऑल्सो आई एम सेइंग विद प्लेसमेंट सीजन में 2 दिन का टॉपिक भी नहीं है स्टैक्स. इफ यू कैन अकोमोडेट इन दी बैकअप डेज दैट आई हैव गिवन यू, उसको कर दो वहीं पे अकोमोडेट, तो बेस्ट है, ठीक है. जस्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ 11 क्वेश्चन, ठीक है. 3 दिन ले लो, दिन के 3-3 क्वेश्चन कर लेना, और इस जो तुम्हें बैकअप डेज है उसमें कर लेना, एंड विल बी एबल टू गेट थ्रू स्टैक्स, ओके. एंड क्यूज़ आई वुड से ऐसा कुछ पूछा जाता ही नहीं है क्यूज़ से, सो जस्ट चिल, ठीक है. क्यूज़ अगर आया भी तो तुमने क्यू का, तुम्हें क्यू की अंडरस्टैंडिंग BFS में आ जाएगी, जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा ना, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च होगी. वी यूज़ अ क्यू फॉर दैट, सो यू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यू देयर इटसेल्फ. तो जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन आ गया तो यू एटलीस्ट नो क्यू क्या होता है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है. इट्स नॉट दैट आई वांट यू टू डू ऑल द स्टफ दैट इज प्रेजेंट इन द शीट एंड इन DSA इन जनरल. आई वांट यू टू डू इट स्मार्टली, ठीक है. तुम्हें अगर सब करना है, आई एम नॉट सेइंग मत करो, बट आई एम सेइंग पहले जो बोला है उतना कर दो, उसके बाद तुम करो जो करना है, कोई टेंशन नहीं है. बट इतना भी नहीं करोगे और तुम क्यों कर रहे हो बैठ के, देयर इज नो यूज़, राइट. वी हैव टू गो ऑन प्रायोरिटी बेसिस. दैट इज like I am also seeing in corporate, everything is P0, P1, P2, ऐसा ही होता है. भाव उसी को मिलता है जो P0, P1 है, ठीक है. तो we are also going to solve our problems like that now. Cool. So that is how we are going to get, we are done with all of these topics. Now is there anything I'm missing? Let me check. Feed, divide and conquer with magic is okay. Yeah, just one thing. Now ये एक चीज़ है जो कि कुछ कुछ कंपनीज को टाइम पास करना होता है तो पूछ लेती है वो. यहाँ पे खूबसूरती से लिखा है वो, क्या हो गया, द क्वेश्चंस. ये एक्चुअली आई एम आल्सो नॉट इलम इफ आई एबल टू सी द क्वेश्चन, पर लिंक भेज दे यार, ठीक है. मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है. या सो या आई जस्ट गेट बैक, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, सॉरी. या सो आई वाज सेइंग दैट सॉर्टिंग में ना, ये जो होता है ना, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट. अगर तुम्हारा दिन खराब चल रहा है इंटरव्यू के दिन, और तुम मर्ज सॉर्ट रट्टा मार के नहीं गए हो या क्विक सॉर्ट रट्टा मार के नहीं गए, और इंटरव्यू ने पूछ लिया, बस सारा DP ग्राफ धरा रह जाएगा, ठीक है. सो ये गलती मत करो, ठीक है.
तीन हार्डली तीन एल्गोरिथम है, तीन चार। प्लीज़ रट्टा मार लो, मुझे पता है बहुत बेकार है, मैं मान रहा हूँ, मुझे आज भी बबल सॉर्ट नहीं आता है, ठीक है। मैं आज भी बैठ के बबल सॉर्ट इन्वेंट ही करता हूँ, मेरे को आता ही नहीं है और मेरे को सीखना भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा तो एटीट्यूड ही अलग है इसको लेके। बट आई एम नॉट सेइंग कि तुम वो चीज़ करो। कुल, आई वॉन्ट यू टू लर्न दीज एल्गोरिथम जस्ट इन केस कोई पूछ ले। तीन एल्गोरिथम है, रट्टा मार के ख़त्म करना, ठीक है। एंड मर्ज सॉर्ट तो वैसे भी तुम्हें हेल्प करेगा एरे के क्वेश्चंस में, है ना। सिलेक्शन इंसर्शन इतना घुसने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू बबल मर्ज एंड क्विक सॉर्ट एटलीस्ट, उतना तो पूछ सकते हैं तुमसे, क्योंकि ओके। एंड क्विक सॉर्ट करोगे तो कोई पार्टिशनिंग के क्वेश्चन आएंगे, विल बी एबल टू डू इट, राइट। बबल सॉर्ट तो ऐसे ही चिंदी सा एल्गोरिथम है, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। एंड मर्ज सॉर्ट विल हेल्प यू व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस जहाँ पे एरे तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट। यू विल बी डूइंग इट देन। सो दैट इज हाउ योर डीएसए प्रिपरेशन लुक्स लाइक। कुल, अब मुझे बताओ किसका क्या क्वेश्चन है डीएसए को लेके। तुमने आज तक डीएसए किया, क्यों फेल हुए, क्यों अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा नहीं लगता, कोई और रिसोर्स चाहिए, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ भी पूछो, एनीथिंग डीएसए रिलेटेड राइट नाउ, क्विक पूछो जल्दी से। अब कोई तो पूछो, वरना हम उठा के पूछेंगे यार कि प्लान में कोई दिक्कत है या नहीं है। वी नीड सम थिंग टू रिलाई ऑन। अच्छा चलो पूछते हैं। अच्छा प्रतीक, तू ही आ जा भाई। यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक, इज देयर अ लूप होल इन द प्लान दैट वी आर प्रपोजिंग, और यू थिंक इट्स ऑल गुड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक इट्स गुड, इतना पहले कर ले, बाकी लूप होल तो बाद में ही ढूंढेंगे। हाँ नहीं, बट ऐसा कुछ लग रहा है कि ये टॉपिक यार मैंने पहले भी किया है, मेरे से होता नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक जो तेरे को डर लगता है, एनीथिंग लाइक दैट? वो मतलब मोस्टली वही ट्रीज एंड वो वाले एरियाज, जो मतलब एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स वाले हो, तो उसी में दिक्कतें होती है। राइट 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 राइट। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो जैसे तुम उसको शुरू करोगे ना बेसिक से, बिल्कुल अब तक तुम्हें किसी ने टॉपिक का ऑर्डर ठीक से नहीं बताया ना, दैट्स व्हाई देयर वाज सम अमाउंट ऑफ स्ट्रगल दैट कम्स इनटू इट। अभी जब तुम प्रॉपर ऑर्डर में जाओगे ना, इजी से तुमने आइडेंटिकल किया, ट्रेवर्सल किया, देन यू विल ट्राई टू डू सम अदर क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू डू। तो वो चीज़ें धीरे 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 सेट हो जाएंगी, आई थिंक तुम्हारे लिए भी, है ना। बट या आई थिंक ओके तनिषा, यू हैव समथिंग टू से, यू ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम विद ट्रीज, आई एम गेसिंग। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे, राइट, इट विल मेक थिंग्स ईजियर, काफ़ी ईजियर फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग कि टाइमलाइंस एग्रेसिव नहीं है, थोड़ी एग्रेसिव है, आई एग्री। तीन तीन दिन में हम लोग टॉपिक निपटा रहे, इट्स नॉट वेरी समथिंग दैट आई वुड विश टू डू, बट वी हैव टू डू, डोंट हैव एन ऑप्शन राइट, करेक्ट। सो ओके, सो विल जस्ट टेक अ चेक, इज एवरी वन ओके, जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि तुम लोग को बोलते तो हो नहीं कुछ। हाँ ओके, थैंक यू। What percentage of questions we should be able to do by ourselves without getting help from YouTuber solutions? Very good question, Drumil. So, whenever you're solving a question, right, अगर तुमने वो टॉपिक कभी किया ही नहीं है, तो पहले तो जैसे लगभग या कुछ बताया मैंने ना, उसकी तीन चार वीडियो देखो, समझो टॉपिक कैसे होता है, तीन चार बेसिक क्वेश्चन उसके साथ कर लो, राइट। एंड देन यू गेट अ न्यू क्वेश्चन। नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू रिलेट टू एनी क्वेश्चन दैट यू हैव डन टिल नाउ, आइदर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है, या तो ये क्वेश्चन ही बहुत नया है, दोनों में से एक है, ठीक है। इफ इट्स द लैटर देन इट्स ओके, बट इफ इट्स द फॉर्मर कि तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो एंड देयर इज अ रिलेटेड क्वेश्चन टू इट, देन यू नीड टू डू अ चेक दैट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाई आर यू नॉट एबल टू थिंक लाइक दैट, ठीक है। तो तुम्हें वापस रिविजिट करना चाहिए जो तुमने पढ़ाई करी है अभी तक, कूल। बट अभी तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैं अपना तरीका बताता हूँ, मैं 8 से 10 मिनट देता हूँ क्वेश्चन को, पीपल विल टेल 1 घंटा लगो, सॉल्व करो, डोंट गिव अप, ऑल ऑफ दैट बुलशिट, बट इट्स ऑल गुड व्हेन यू हैव 2 years टू डू डीएसए, नॉट 2 months, ओके। सो गिव 10 minutes, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू बिल्ड अ लॉजिक, इतना लॉजिक बिल्ड करो कि पेपर पे तुम्हारा कोड चल रहा है एटलीस्ट, राइट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। मान लो कोड चला ही नहीं, और बिल्कुल नहीं चल रहा, पेपर पे भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, देन यू गो टुवर्ड्स डिस्कशन एंड देन यू स्टार्ट सीइंग सॉल्यूशंस, हाउ पीपल आर डूइंग इट। बट वेन एवर यू डू समथिंग लाइक दिस, राइट, कि तुमने सोल्यूशन जाके देखा, ऑलवेज सी 3 solutions, ठीक है। 3 सोल्यूशन देखो, 3 तरीके देखो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के, बिकॉज सिंस तुम आज नहीं सोच पाए हो इसके बारे में ना, देयर इज अ हाई चांस दैट सम टाइम फ्रॉम नाउ यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन। बट इफ यू सी 3 solutions टुडे, देन एटलीस्ट एक यू विल रिमेंबर, ठीक है, एंड दैट विल बी द गुड पार्ट अबाउट लर्निंग थ्रू डिस्कशंस हियर। एंड वो भी नहीं हो रहा, देन यू कैन गो टुवर्ड्स यूट्यूब एंड डू दैट क्वेश्चन, बट नॉट मोर देन 10-15 minutes ऑफ योर सेल्फ ट्राई ऑन अ क्वेश्चन, बिकॉज अगर तुम्हें कुछ भी लॉजिक बिल्ड नहीं कर पा रहे, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट। मैं तुम्हें, तुम अगर एक खाली बंदूक लेके चला रहे हो बिना गोली के ना, तुम नहीं एज्यूम कर सकते कि टारगेट पे लग जाएगा, दैट इज द काइंड ऑफ वर्क यू आर ट्राइंग टू डू हियर, राइट, दैट्स द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कूल। सो व्हाट अबाउट कोड फोर्सेस, जैसे प्रॉब्लम ऑफ वैराइटीज इन नोटिंग या फिर नॉर्मल डीएसए बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, ओके, गुड क्वेश्चन। द थिंग इज दैट आजकल ओटीज के लेवल बढ़ गए हैं, आई डू एग्री, बट अब तो हम लोग कोड फोर्सेस कोड शेफ करने तो नहीं बैठ सकते इसके बाद, तो द सोल्यूशन टू दिस इज लीड कोड के कॉन्टेस्ट, ओके। तो तुम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आई डोंट केयर तुम एरे कर रहे हो, स्ट्रिंग कर रहे हो, हैशिंग कर रहे हो, एवरी संडे यू हैव टू गिव द कॉन्टेस्ट, दैट इज द बेसिक कमिटमेंट दैट यू हैव टू हैव, राइट।
so much fees your parents are paying and all of that shit, and then you can't wake up and give a contest, then what's the use of all of this that we're doing right now, right? So that is the basic thing that I'm assuming that you'll be able to do, right? And so yeah, please give contests so that you know how to do it in time bound manner and think efficiently. There are some questions areas that are related to DP. I guess in the Striver sheet. Is it like that? How can I skip that an idea? Knowing I'll tell you something. Striver sheet is one of the most organized sheet. I have hardly seen questions to DP se related. Even if it is related to DP, right? It is doable without DP then. And you have to figure out why, how it is doable without DP. एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, but not ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, one or two questions max. Because whenever I used to do array, right? Even though I knew DP, I always used to try doing it without DP अगर वो possible है. एंड जब डीपी में वो क्वेश्चन आता था मैं डीपी से करता था, क्योंकि इंटरव्यू में तब थिंग इज नॉट कि तूने डीपी कर दिया तो तू कूल बन जाएगा, राइट? इट्स कि तूने क्वेश्चन कितनी जल्दी और एफिशिएंटली किया, बस वो मैटर करता है, राइट? सो आई वुड से ऐसा इतना प्रॉब्लम कुछ आएगा नहीं तुम्हें. इफ आई वुड हैव गिवन यू लव पेपर का शीट, राइट, देन इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम. वहाँ मैंने देखी है प्रॉब्लम, यहाँ पे नहीं होगी तुम्हें प्रॉब्लम. सो वुड यू रिकमेंडिंग सीइंग अदर सबमिशन वाइल सॉल्विंग? नॉट वाइल सॉल्विंग, व्हेन यू फेल एट इट देन यू वॉच, ओके? एंड व्हेन यू सक्सीड आल्सो देन आल्सो यू कैन गो अहेड एंड वॉच कि बाकी लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे किया है. One thing that you can do if you're solving on GFG, there I give the expected time complexity. कभी कभी उससे ज़्यादा में भी पास हो जाता है, but you should still try to restrict to that time complexity whatever they are giving there, okay? And अगर तुम्हारा कभी ऐसा हो गया ना कि तुम्हारा O of n square था, सैम्पल चला और बाकी फेल हो गया सबमिट करते समय, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक. नाउ यू कैन टेक अनदर 10-15 minutes टू ऑप्टिमाइज इट, ओके? अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा तो 10-15 मिनट में हो गया, बट अगर TLE आ रहा है या सेगमेंटेशन आ रहा है, राइट, नाउ यू गिव योर सेल्फ मोर 10-15 minutes to solve the question. That is how you decide कि I am giving time to this question or not. Because I am telling you this because OTs में भी ऐसे सोचते हैं हम लोग. अगर OT में कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता है क्वेश्चन में, no point in sitting 30 minutes, you go to the next question and solve it. But अगर तुमने किया और TLE आ रहे 3 टेस्ट केस में, you know there is something that can be done about it, then you devote time to it. दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू इंकलकेट इन यू राइट नाउ, कि तुम अभी से अगर ऐसे प्रैक्टिस में ऐसा करोगे ना कि प्रायोरिटाइज करोगे हर चीज़ को, दैट इज़ वॉट यू विल डू इन दी रियल स्टफ ऑल्सो. बिकॉज यहाँ स्टेक्स बहुत लो है. दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस मैच वे यू आर ओनली फाइटिंग विद योर सेल्फ. फ़र्क नहीं पड़ता इतना कि तुमने ऊपर नीचे कुछ कर भी दिया तो, बट इन रियलिटी इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके? Every time I work on arrays, I'll get stuck on the time complexity 2. Does space complexity and only work in parallel, like reduced on time complexity increases? देख यार, इट्स नॉट ऑलवेज द केस, बट तू खुद सोच. मान ले अगर O of n स्क्वायर है मेरे कैरे के क्वेश्चन का सोल्यूशन, और मैंने एक हैश मैप यूज़ किया उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए O of n में. नाउ तेरा आंसर इसी सेंटेंस में है. मैंने एक हैश मैप यूज़ किया इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो गई, बट हैश मैप यूज़ कर दिया, O of n हो गया, राइट? सो देर इज़ अ ट्रेड ऑफ. इसको स्पेस एंड टाइम ट्रेड ऑफ बोलते हैं. अगर कभी किसी ने DA में पढ़ा हो तो उसमें आता था ये टॉपिक भी, ठीक है? सो देर इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रेड ऑफ दैट इज़ देयर, बट आई वुड से दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर्स मोर इन इंटरव्यूज़, क्योंकि मैंने भयंकर यूज़ किया स्पेस का बहुत बार इंटरव्यूज़ में. 5-5 एरे भी बनाए हैं जब ज़रूरत पड़ती है, एंड वहाँ पर पड़ती है ऑनेस्टली, क्वेश्चन बहुत गंदे भी आ जाते हैं. सो डोंट थिंक मच अबाउट स्पेस. जस्ट वन थिंग दैट डोंट एलोकेट मेमोरी इनसाइड फॉर लूप्स, वो बहुत शिटी हो जाता है फिर. इफ़ यू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ देन इट इज शिटी, ओके? बट इफ़ यू आर मेकिंग हैश मैप्स एंड ऑल दैट, राइट, एक बार तुमने एक हैश मैप या एक एक्सटर्नल एरे बना लिया ना, काउंट एरे और समथिंग, इट इज़ O of n. अब तो एक एरे बना या 5 एरे बना, वो 5 and 6 and is all n only, right? So it doesn't matter, correct? So that is what I would say about your this thing, time complexity and space complexity. Cool. And yeah, or one more thing, learn time complexity of algorithms, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कोई n स्क्वायर बोल रहा है, कोई n बोल रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ओके? बी इन द लूप ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, ओके? Any suggestion for CS fundamental? Yeah, we'll be coming to that, Ishan, very soon. So anything related to DSA, Abhi, just I wanted to know. Top 5 important OT topics. Yeah, sure, bro. Heaps, greedy. Okay, I would say hashing is also important, I would say. ठीक है. Then DP, graphs, rare है थोड़ा सा. ठीक है, it's a little rare, I would say. Right, and I think one more topic I told you for this particular, yeah, sliding window. Sliding window is extremely important. एंड 2.0, राइट? सो ये सारे पॉइंट जिसको तुम देख सकते हो. कूल. हाँ, या वेलकम. सो या आई थिंक दैट इज़ प्रिटी मच अबाउट DSA. मैं तुम्हें या ऑब्वियसली ब्रो संदीप, ऑब्वियसली लाइक द, तो ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैं ग्राफ के क्वेश्चन OT में सॉल्व करके जा रहा हूँ, इंटरव्यू में एरे पूछ रहे हैं. बहुत होता है ऐसा, इसलिए तो मैं इतना लो बॉल कर रहा हूँ इंटरव्यू को. इंटरव्यू तो कुछ भी नहीं है, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना. वंस यू गेट थ्रू दी OT, तुम्हारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट निकल गया है.
अगर तुमने ओटी खुद से दिया है, सही से दिया है ना, इंटरव्यू ऑलमोस्ट निकल गया टेक्निकल पार्ट, बिकॉज अब बीटी होगी नहीं ज़्यादा। CS फंडामेंटल अगर तुम्हें आता है ना, द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज HR एंड थोड़ा लक, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वर्क्स इन एन इंटरव्यू आफ्टर दैट, है ना। तो ओटी इज़ द बैरियर यार, तुम रियलाइज़ करोगे इतने ओटीज दे रहे होगे तुम पागल हो जाओगे एक पॉइंट पे, एंड यही रीज़न होता है कि काफ़ी कंपनीज छूट जाती हैं, राइट। सो थोड़ा इशू तो है, आई अंडरस्टैंड ओटीज आर एन इशू, बट इफ़ यू आर अ जेन्युइन कोडर, राइट, यू विल गेट थ्रू इन ऑफलाइन ओटीज। ऑफलाइन ओटीज में कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता किसी का, ठीक है। इफ़ यू आर जेन्युइन कोडर यू विल गेट थ्रू, ठीक है। मेरे साथ भी यही होता था, ऑनलाइन ओटी क्लियर नहीं होता था, बट अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑनेस्टली इन ऑनलाइन ओटीज, because they feel that people will cheat or something, so they give very very difficult questions because of that. But offline OTs, it's a bit genuine, because they know that it's a fair place, so they give questions that can be solved actually, right? So offline, how much percentage is that in our placement? Yeah, we do have offline यार, इतना ऐसा नहीं कि बहुत कम है, it's a little number of good companies online OTs। या यार देखो, मेजोरिटी तो ऑनलाइन ओटीज ही होंगे इफ़ आई टू टेल यू, ठीक है। बट वेर एवर यू गेट एन ऑप्शन टू गिव ऑफलाइन ओटी, यूटिलाइज इट, करेक्ट। एंड जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज होती है ना, लाइक B20-30 टाइप्स, उसमें ही आते हैं ऑफलाइन ओटीज नॉर्मली। लीड कोड हार्ड इन ऑनलाइन ओटीज, हाँ यार आ सकते हैं, आ सकते हैं, मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, आ सकते हैं। बट देखो, मैं तुम्हें आज थोड़े बहुत जुगाड़ समझाऊंगा, ठीक है, ओटीज क्लियर करने के लिए, ध्यान से सुनो। ओके, सो अभी ऐसे क्वेश्चन आया, ठीक है, मान लो एक एरे है, उसमें बोल दिया यार मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ एसेट्रा एसेट्रा समथिंग दिस साइड, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, राइट। और तुम्हें अब टेस्ट केस, तुम्हारा एक क्वेश्चन हो चुका है, तुम बस एक क्वेश्चन लेके बैठो, तुमसे नहीं हो रहा, किसी से नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अब तुम हैकर रैंक होता है नॉर्मली, राइट, यू स्टार्ट प्लेइंग विद द हैकर रैंक नाउ। ओके, तुम्हें पता है कि एरे का साइज 0 आएगा तो 0 ही आंसर है, पहला टेस्ट केस। यू नो कि एच केसेस है, ठीक है, एच केसेस निकालना शुरू करो। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता बट तुम इतने पढ़े लिखे हो कि तुम्हें एच केस समझ आता है क्या होता है ना, उसके टेस्ट केसेस होते हैं हमेशा, कूल। एंड देन कुछ क्वेश्चन में कंडीशन होती है, इफ द फाइनल आंसर इज अबाउट 10⁻⁶ रिटर्न दिस, तो यू नो कि हाँ अगर आंसर आएगा, सो यू स्टार्ट बिल्डिंग दोज एच केसेस, राइट। आई हैव हैड टाइम्स जब मेरे से ओटी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, और मैंने 10 में से 6 टेस्ट केस ऐसे ही मैनुअली डिराइव करके कर लिए थे सॉल्व, बिकॉज मेरे को क्वेश्चन का फंडा समझ आ गया है, बट मेरे कोडिंग में कुछ फकअप हो रहा है, राइट। सो आई नो कि मेरे को कैसे इसमें अप्रोच करना है। सो आई एम टेलिंग यू दिस इज काइंड ऑफ अ जुगाड़ ओनली, आई वुड से। बट यार एवरीथिंग इज़ फेयर भाई, क्या गलत है, मतलब नौकरी लेने के लिए करो, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। सो इसलिए आई एम सेइंग, तो यू शुड हैव द एबिलिटी कि तुम टेस्ट केस सोच पा रहे हो, ठीक है, कि क्या हो सकते हैं एच केसेस, 0 वाला, 1 वाला, -1 वाला। दैट विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू जब तुम्हें कुछ नहीं आता है, दिस इज ऑल्सो हेल्प यू जब तुम्हें 10 में से 7 हो गए और 3 बचे हैं। नाउ यू डोंट नो हाउ टू गेट थ्रू दीज 3 टेस्ट केसेस, वो 3 नॉर्मली यही 3 होते हैं जो कि एच केसेस तुम छोड़ते हो। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एवरीवेयर, रिगार्डलेस ऑफ यूर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट। Obviously, भाई, obviously, Patel solution have some weight in the OT, like it wasn't completed and haven't tested till then. What do you mean, Sandeep? Unmute करके समझा दे यार, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। बता बता बता, what are you trying to say? या फिर थोड़ा सा फिर से लिख दे, मतलब सही से, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि तू बोल रहा है कि पार्शियल टेस्ट केसेस की वैल्यू होती है नहीं होती है। सो देर इज़ अ वैल्यू अटैच टू पार्शियल टेस्ट केसेस, बहुत वैल्यू अटैच्ड है, ठीक है। लाइक पीपल, लाइक इन वन ऑफ द ओटीज दैट आई गॉट थ्रू, people had solved only one test case lesser than me and they did not get through, okay। नहीं, कंपाइल तो होना है यार, कंपाइल तो हमेशा होना है। इफ समथिंग डज नॉट कंपाइल, इट्स यूजलेस, ओटी बंद करके चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कंपाइल तो होना है विदाउट एरर्स, एरर तो वही पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। सो वो तो बिल्कुल ही छोड़ दो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक एक टेस्ट केस मैटर करता है, एवरी टेस्ट केस हैज़ पॉइंट्स हियर, राइट। एंड देन वी हैव सम ओटीज वेयर कॉलेज का हाईएस्ट ही 6 टेस्ट केस, 8 टेस्ट केस होता है 20 में से, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। सो नेवर गिव अप इन एन ओटी, आई वुड टेल यू, राइट। बहुत बार ऐसा होगा तुम सोच रहे हो क्या मेरे से तो 5 ही हो रहे हैं, लोग तो 10-10 कर रहे होंगे, यू नेवर नो। हो सकता है लोगों से 10 क्या 2 भी नहीं हो पा रहे हो, तुम 5 करके बैठे हो। मोमेंट यू गिव अप देयर विल नेवर स्ट्राइव टू डू इट टिल 7, 8, 10, राइट। नेवर डू दैट। ओटी में यू नेवर नो द पब्लिक का क्या हाल है अभी, ठीक है। पब्लिक का हाल ओटी के बाद ही पता चलता है, एंड देन यू रिग्रेट कि मैंने क्यों गिव अप कर दिया। सो डोंट डू दैट, ओके। यू नेवर नो व्हेन तुम्हारा लगभग चमक जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। सो या दैट्स अबाउट दैट्स अबाउट DSA, राइट। आई जस्ट आस्क्ड 2-3 पीपल, बस बता देना तुम्हें समझ आया नहीं आया सब कुछ, कूल, ओके। सो या तनीषा, शिवम, सांगवी, कुछ बता दो, यू गाइस आर ऑल गुड विद दिस, व्हाटएवर यू टॉक्ड अबाउट, एनी डाउट्स? ओके, तनीषा says all good, okay। Yashvardhan, Yatin, Vinay, anything you guys want to say? Yeah, does solving 2 questions using all time or complete one solution plus other just cases which has more chance to cover?
does solving two questions and using all time cool or complete one solution and other test cases. देख यार तेरा वेटेज तो टेस्ट केस पे मैं वेरी करता है. अगर मान ले तेरे दोनों क्वेश्चन पॉइंट्स लिखे होते बहुत बहुत बार वहाँ पे बाय द वे, तो मान ले 20-20 के तेरे क्वेश्चन है हैकर रैंक पे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 10 टेस्ट केस है, एक क्वेश्चन में 20 टेस्ट केस है. अब मैथ्स लगाते हैं हम लोग, ठीक है, कि 20 टेस्ट केस जहाँ पे है 20 पॉइंट के लिए, हर टेस्ट केस की वैल्यू 1 पॉइंट है, राइट. बट जहाँ पे 10 टेस्ट केस है खाली 20 पॉइंट के लिए, हर टेस्ट केस की वैल्यू 2 पॉइंट्स है. तो ना यू नो विच क्वेश्चन टू गिव मोर वेटेज टू. दैट इज एटलीस्ट हाउ आई यूज टू डिसाइड कि मेरे को क्या करना है, ठीक है. बट सिमिलर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है फिर तो कोई मैटर नहीं करता. तो एक पूरा कर या दोनों में आधा आधा कर, नो वन केयर्स, इट्स ऑल द सेम टू देम. अंत में दिस नथिंग की टोटल पॉइंट्स आते हैं MCQ प्लस कोडिंग एक एक्सेल में. दे कट एट 10 पीपल 20 पीपल, रेस्ट आर ऑल एलिमिनेटेड. पहले 10-20 को इंटरव्यू का कॉल चला था. दैट इज हाउ शिट वर्क्स, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है. सो बस ऐसे ही चलता है, इट्स ऑल ऑन पॉइंट्स, नथिंग एल्स. कूल. एंड या प्लान एग्जीक्यूट. प्लान तो परफेक्ट है, बस एग्जीक्यूट करना होगा भाई. अब नहीं करोगे तो कब करोगे भाई. ठीक है. So yeah, यार हो गया. I think DSA pretty much we spoke a lot about DSA. Okay, and if you know nothing about me, I would tell you, ठीक है, कि मैं I've done this stuff for 2 years, and if I'm telling you इसको ऐसे करना है, this is one of the best ways out there to do. I'm not saying it is the best, it is one of the best ways to get shit done right now, ठीक है. And I've also come from the Manipal, same thing, everything. So I know कैसे things are going to work out there, right? So मैंने किया है भाई. If you want validation, I've done 800,000 questions of DSA. एंड देन आई एम टेलिंग यू टू डू 300 क्वेश्चंस. सो डेफिनेटली तुम 300 क्वेश्चन में कुछ तो बात होगी कि ठीक है. सो अगर तुम इसको सही से कर लो देन नथिंग मोर यू वांट टू डू. पैटर्न्स क्वेश्चंस पूछते हैं क्या? पैटर्न्स मतलब तो स्टार पैटर्न बोल रहा है प्रतीक? अरे बता भी दे भाई. स्टार पैटर्न बोल भाई, मुझे खुद नहीं आता भाई. तू अभी दे दे मेरे को कि भाई ये ट्रायंगल बनाओ, पिरामिड बनाओ, उड़ता हुआ चिड़िया बनाओ. भाई ये तो बकवास चीज़ है ना, कोई नहीं पूछता, ठीक है. मैं तो कभी करता भी नहीं हूँ. नॉट यूजफुल भाई, नॉट यूजफुल. इसलिए ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. ऐसा नहीं कि इसमें चीज़ें है नहीं. ये लर्न द बेसिक में अगर तुम जाओगे यहाँ पे ना, ये डेफिनेटली हैव सच स्टफ, बिल्ड अप लॉजिक. ये देखो पैटर्न्स यहाँ पे, राइट है ये चीज़ें. बट रीजन आई एम टेलिंग यू टू स्किप इज की वैल्यू नहीं है ना. सो इट्स अ वेरी वेल थॉट प्रोसेस वॉट एवर आई एम टेलिंग यू. तो डोंट वरी, कुछ ऐसा मिस आउट नहीं हो रहा तुम्हारा इसमें, ठीक है. द मोमेंट यू डन ऑल ऑफ दिस स्टफ, राइट, देन यू कम टू मी, आई विल टेल यू मोर स्टफ टू डू जो भी तुम DSA में कर सकते हो. नो एंड भाई, बहुत कुछ है करने को. अभी तुमने ट्राइज वगैरह किया नहीं है, बट हाँ प्रोजेक्ट स्लैश इंटर्नशिप मतलब भाई थोड़ा सा बता दे. और मतलब व्हाट यू वांट टू से हेमंत, लाइक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर लाइक CV के लिए व्हाट आर यू आस्किंग एग्जैक्टली? थोड़ा बता दो मेरे को. मैथ की कुछ फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या सीन है? हाँ ब्रो, ये बताया ना तुम्हें एप्टीट्यूड में, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. सो ये फालतू क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एप्टीट्यूड के लिए. उस पर भी आएंगे, मैं बताऊँगा कैसे करना है वो, ठीक है. आई टेल यू हाउ टू डू एप्टी. बट लेट्स हेमंत, आई एम एज्यूमिंग यू विल राइट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन टू योर क्वेश्चन. आई विल जस्ट मूव ऑन देन फ्रॉम हियर. ओके, यू आर राइटिंग इंपॉर्टेंट द प्रोजेक्ट भाई. हाँ, विल कम टू दैट. ओके हेमंत, आई विल इंक्लूड दैट in the stuff that we're going to discuss in our priorities right now. CS fundamentals is the first one, right? Second one is aptitude, ठीक है, whatever I've told you till now, right? Then third one has to be dev. Okay, mostly we'll be taking Ilham's and Ankit's help. Whatever I know I'll tell you, ठीक है. Then internship के बारे में जो भी तुम बताना चाहते हो, ठीक है. And projects, ठीक है. Then we'll have CV, right, and then we'll have just HR. Cool. So this is the stuff we have. 12:30 हो चुके हैं, अब हम थोड़ा खींचेंगे जल्दी से, ठीक है. सो लेट्स गो फॉर CS फंडामेंटल्स राइट नाउ. कूल. सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सुंदर सा PPT बनाया था एक बार, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है. सो अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक तुम्हें टॉपिक दिख रहा होगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है. यहाँ पे जाओ, लव बबर OS लिखो, ठीक है. हाँ बहुत सही भाई, टाइपिंग हो नहीं रही है भाई मेरे से, ठीक है. कूल. सो यहाँ इसकी एक प्लेलिस्ट है सुंदर सी 32 वीडियोस की, ठीक है. तुम्हें ये प्लेलिस्ट करनी है करो, नहीं करनी मत करो, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है. इसके अंदर एक वो रहता है यार, नोट्स का लिंक रहता है, वो चोरी हो गया लग रहा है, ठीक है. रुको, आई विल गिव यू दैट नोट्स का लिंक. आई थिंक वी डिस्कस दिस नोट्स का लिंक एक बार बिफोर ऑल्सो, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हम लोग के ग्रुप पे आते रहते नोट्स का लिंक, या दिस वन, करेक्ट. सो आई विल शो इट टू यू. या तो यार when I went to my Cisco interview, right, I did learn from this a lot.
एंड एवरीथिंग वाज आस्क्ड फ्रॉम दिस ओनली, लाइक सेम भाई, ऐसे मैं मैप कर सकता था अपने क्वेश्चंस को जो भी पूछे जा रहे थे, राइट. सो दिस इज द बेस्ट नोट्स आउट देयर. यू डोंट वांट टू वॉच वीडियोस, डोंट वॉच, बट एटलीस्ट ये नोट्स पूरी करके जाओ. करेक्ट. दिस इज द बेस्ट नोट्स यू कैन आस्क फॉर ओएस, राइट. बट आई टेल यू, जो तुम्हें वीडियोस करनी चाहिए मेरे हिसाब से, आई टेल यू दैट ऑल्सो. ठीक है, ऐसे. सो मेरे हिसाब से यू शुड बी डूइंग, एटलीस्ट तो सारे ही करने चाहिए तुम्हें, बट हाँ, टिल ईयर 23 वीडियोस. नोट दिस डाउन. आयुष या नोट दिस डाउन, 23 वीडियोस. दिस इज ऑल फॉर टाइम पास. तुम डीएसए एरेस्टिंग करके थक गए हो, दिन के 3 वीडियो देख लो इसके, ठीक है, नो बिग डील. इट्स ऑल एंटरटेनमेंट भाई, मज़ा आता है पढ़ने में. मोबाइल और लैपटॉप कैसे चल रहा है, ठीक है. और तुम लोग अगर ओएस पढ़ चुके हो और अच्छा है. फॉर एवरी पर्सन हु इज़ नॉन सी एस राइट नाउ, हियर मी आउट वेरी केयरफुली. OS is the heart of computer science. Do not skip it if you are aiming for coding jobs. ठीक है. It is so useful. Like even right now, I'm doing iOS development. In that, I have to think about resource allocation, race conditions in API calls. All of those stuff I have to think about right now also. So you can understand how important it is. ओके. सो OS को तुम नहीं छोड़ोगे, ठीक है. OS तुम नहीं छोड़ोगे. जो नॉन सी एस हो सारे करो तुम, ठीक है. और नोट्स तो मेरे पास है ही है. जो सी एस ऑलरेडी पढ़ चुके हो OS वगैरह 23 तक करो और नोट्स अच्छे से पढ़ लो. दैट इज़ प्रिटी मच अबाउट OS. आई डोंट वांट टू हाइप इट अप कि कुछ बहुत एक्सट्रीम है. कुछ एक्सट्रीम नहीं है, यही है बस. इसको कर लो, नथिंग मोर विल बी आस्क्ड. एनी डाउट्स अबाउट OS, रेज हैंड, आस्क, या फिर चैट पे डाल दो क्विक. कूल. ओके, बताओ. इन्वेस्टर वेल, नोट्स ओनली. या नोट्स ओनली, देन इट्स फाइन. अगर तुम्हें OS आता है तो नोट्स ओनली, ठीक है. और हाँ, अगेन भाई, तुम्हें OS आता है नहीं आता है तुम्हारा ग्रेड डिसाइड नहीं करता. तुम्हें अंदर से पता होता है तुम्हें कितना आता है. ओके. सो जस्ट फोकस ऑन दैट मोर. नाउ लेट्स गो टू CN. नाउ CN ना थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज CN का कोई बहुत डायरेक्ट रिसोर्स नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, ठीक है. बट एक सुंदर सा चैनल है, गेट स्मैशेस करके. जस्ट अ सेकंड. या हाँ, तो इसकी एक गेट मैसेज की प्ले लिस्ट है, तो तुम्हें अब 103 वीडियो दिख रही होगी. बट इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन नेटवर्किंग कंपनीज लाइक सिस्को एंड ऑल, राइट, बहुत पूछते हैं यार वो ये सब, ठीक है. एंड सिस्को मोस्टली आएगी, लाइक अंकित इलम कैन कन्फर्म. सिस्को आ रही है ना कैंपस में इस बार, पता चला है CN पढ़ के बैठ गए. लेट मी नो. Yeah, I think they should come this time. They should come. But yeah, it also depends because if it's like a software role, for me, there was no networking questions asked at all. Correct, for some correct. reason. Because I'm working in the cloud, hybrid Right. cloud infrastructure Right. team. So mostly if it's like a networking related role, yeah, they'll be asking a lot of networking questions. Correct. And I think, by the way, Ilham's and my interview was the same in Cisco. Cool. So in my CV there was one question of one project of CN, ठीक है. That was the reason उन्होंने CN लपेट दिया था फिर मेरे ऊपर. So अगर तुमने CN का प्रोजेक्ट डाला है फिर तो एक्सपेक्ट करो Cisco में, and every company for that matter. And I think Ankit is working with networks right now, so I'm assuming उसको पूछा होगा in interviews, right. So CN is important not only for Cisco. I am saying in general it is very important. You don't know how TCP UDP works, you don't know how post get and all of this put request work, then it becomes difficult for you to do backend stuff and in general our software development, right. So it's a good Yeah, I agree with that. So even if it's not for interview, in general, it's better for you to know because even when you're working in, let's say, infrastructure or like software development or whatever, you should be able to understand how things communicate with each other, what are protocols, how stuff works, all the 7 layers, and how everything works. It's very important. It's not just for networking companies. Even if you're in like a proper software development role in a proper any company for that matter, you should be knowing these basic stuff, I feel. Yeah, I think that is very true यार. This is extremely important stuff. देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें जॉब लग गई हो फिर जॉब में काम नहीं कर पा रहे हो. That should never happen. Okay, you should be well equipped for everything. So whatever topics you don't know in like TCP layer and all that, right? Whatever that OSI layer you don't know, you can learn from OSI model. इससे सीख लो तुम. Good way is start OSI model in. So if you have no knowledge about CN, right? Start with this playlist. 5 मिनट की वीडियो भी नहीं है, दिन के 5 वीडियो कर लो. धीरे धीरे you will be come to a situation जहाँ पे तुमने मेजर चीज़ें कर ली होगी. You will not need to get into data link so much. I would, if you were to listen to me, you can just do it till somewhere around switch, hub, repeater, ये सब कर लेना. इसके definitions बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बट मेन तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर है. एडवांटेजेस ऑफ TCP, UDP एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट आई वुड से. ये HTTP क्या होता है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है. ये सब जो पॉप अपना मेल वाला हो गया वो सब, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो मैं बोलूँगा ये वाले पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, TCP, UDP वाले. एंड OSI लेयर के लिए जस्ट रिफर टू दिस OSI layer, GFG. This beautiful article written by GFG. ये पूरा पढ़ डालो, ठीक है. पढ़ना सीखो थोड़ा, इससे
टेक्स्ट से भी कभी कभी, इसने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसको सही से तमीज़ से पढ़ लोगे तो हो जाएगा पार ओ एस आई लेयर, ठीक है। सी एन में एटलीस्ट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज डिफरेंस बिटवीन टी सी पी यू डी पी, व्हेन टू यूज़ टी सी पी, व्हेन टू यूज़ यू डी पी, व्हाट आर द ओ एस आई लेयर में क्या क्या चीज़ होती है, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। देन कौन सी लेयर का क्या काम होता है, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल होता है, एच टी टी पी कौन से में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है, एप्लीकेशन में होता है, ऑल ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन इंटरव्यू के रैपिड फायर में पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। सो दैट इज़ वाई सी एन इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। कूल। नाउ ये भाई, इसकी वजह से जितने लोग प्लेसमेंट में फेल हुए हैं ना इंटरव्यू में, शायद ही उतने लोग कोई और रीज़न से फेल हुए होंगे। लाइक ओके, प्लेलिस्ट वुड बी इनफ फॉर एनी ब्रांच स्लाइड। यार ब्रांच स्लाइड मत करना भाई, मैं अपनी ब्रांच स्लाइड से नहीं समझ पा रहा था यार, ठीक है। तो चिल कर, तू आराम से प्लेलिस्ट से कर, कोई सीन नहीं है, ठीक है। जस्ट डू दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में जो समझ नहीं आ रहा उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट से मैप करके पढ़ लो, ठीक है। आई एम नॉट प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शन की पूरी प्लेलिस्ट करो, 100 वीडियो बहुत होती है, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, सो डोंट नीड टू डू ऑल, ठीक है। वट एवर आई एम सेइंग, जस्ट डू दिस आर्टिकल प्रॉपरली एटलीस्ट, ठीक है। एंड अब कौन आया भाई, आ जाओ। कूल। सो नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे तुमने मैं ओटी के लिए बताया था ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतना पूछा गया है प्लेसमेंट में, इतना पूछा गया है, लाइक लोग अपना सर पीटने लग गए कि इतना ओपी पूछ क्यों रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ वेल आई हैव कम इनटू द इंडस्ट्री आई रियलाइज व्हाई, ठीक है। तुम कोड क्या लिख रहे हो किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो कोड क्वालिटी एंड मॉड्यूलराइजेशन ऑल ऑफ द शिट, राइट, दैट मैटर्स अ लॉट, लाइक अ लॉट इन इंडस्ट्री। दैट इज़ वाई इंटरव्यूज़ में इतना फोकस था इस पर, लाइक अब कपल ऑफ माई फ्रेंड्स 5-10 इंटरव्यू में बैठे, 8 में से पूछ ही रहे हो ओपी, वो लोग, इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है ओपी इस पॉइंट पे, राइट। सो ये टॉपिक तो स्किप ही नहीं करना है, ठीक है। Yeah, I'll just add on to this. Like especially for like bigger companies, like companies that work in large scale, OOPS is very important to them because their code has to be very flexible. Let's say you work there, you write some code. Now, 5-6 years down the line, another developer comes. He should be able to understand the code and make modifications without affecting the entire code base that is there, right? So if you don't know the OOPS concepts properly, what happens is that if you modify something, it will change the existing part and everything will be there, everything will go down. So that is why it's very important for them to for an engineer working in these type of companies to implement these kind of stuff. So if you're working in like a large scale company, like with millions of like a software that is used for millions of users, you would be like learning about let's say I was interning at Amazon last year. Had to learn design patterns. This is not very important for the interviews as such, but if you have the time and if you end up learning this stuff and like talking about it during the interviews, I think it will give you like an extra you get the point, right? Like compared to others, you will stand out a little bit. Correct. So like if you have time, look into what design patterns are, because design patterns are very important when it comes to writing loosely coupled code and stuff like that. So like once you cover you should know the basic OOPS concepts first, like abstraction or whatever. So once you have that covered, try to look into some basic design patterns and stuff, and try to play around with and try to understand why it is being used. Because these things are like, let's say I write a code, like even in Amazon when I wrote the code was working perfectly, okay, like 100% no issues at all, testing everything passed. But just because I was not using the right design patterns, they reviewed the code and I had to redo it, refactor it again, because they don't want to send push a code to prod without it being of high quality, right? So like if you are in a company like that, and if you're aiming for like a full-time offer or something like that, either you should be able to pick it up at that time really fast and implement, or you can just look into these things before itself, so that it'll be easier for you at that point of time. So just giving you an idea to like just in case. Correct. I think I completely agree with that. And I'm for your information, in one of my interviews, I was asked system design, which I was not expecting. But I did not know system design like Ilham did. But at least an understanding of OP helped me write proper classes of whatever was required in the question. Okay. So अगर OP बिल्कुल नहीं आता, कभी-कभी directly नहीं पूछते, indirectly आ जाता है. Whatever code you are writing is not using functions, is not utilizing the concepts of OP, right? Then it becomes a problem. They see that you are not applying whatever you learn. Okay. So for OP, I'll again tell you this ratios. LoveBubber has major things that you need to do honestly. Okay. So if you are doing C++ OP, you can do it from here. यहाँ पे these two videos. Cool.
is like 1.5 hour and 1.5 hour. Cool. But if you are a Java person, you are even more lucky because this guy, right, you know Kunal Kushwaha by any chance? इसने OP पढ़ा है जावा में. If you are a Java person, you can do इसका OP if he still has the playlist. Yeah, he does. तो ये 7 वीडियो है इसकी. ये कर लो OP के लिए, you will be set, like set definitely. But the main thing that is there is this 4 pillar of OP. ठीक है. And in GFG. So इसमें एक ये पूरा, हाँ एक पूरा ये है पेज. ठीक है. इसको पढ़ो और OP का सिंपल क्वेश्चन यही होता है इंटरव्यूज़ में, लेट 4 पिलर्स ऑफ OP विद रियल लाइफ एग्जाम्पल. बस यही. तो यही कार बाइक स्कूटर खेलते रहो. यहाँ पे कोड स्निपेट है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. मेरे दोस्तों को स्निपेट्स लिखने को बोल दिए थे कोड के, हर पिलर के और उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल वगैरह ये सब. सो डू दिस स्टफ. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. यार इनहेरिटेंस C++ में भी सेम है, स्विफ्ट में भी सेम है, हर जगह सेम है. तो कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए इसको OP कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम लोग. राइट, इट्स नॉट अ कोडिंग लैंग्वेज, इट्स अ कॉन्सेप्ट. सो प्लीज़ स्टडी इट लाइक दैट. नेक्स्ट DBMS आता है. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें क्या करना है, नथिंग मच दिमाग टू पुट इन दिस. ओके. इसके DBMS के लिए आई थिंक वट कोड हेल्प ही था, आई थिंक. राइट, SQL है. राइट. एंड या दिस वीडियो इज लाइक अ 4 घंटे का वीडियो. बट इफ यू आर एइंग फॉर डेटा एनालिसिस पोजिशंस और SD ऑल्सो, you can do this video. और तुम्हें और प्रैक्टिस करना, there is a practice video of 1 or 2 hours after this. So just do this video for SQL. For normalization, there is a channel called Knowledge Gate. Yeah, Knowledge Gate का normalization है एक. Right. हाँ, इसकी वीडियो में से you can learn normalization आराम से. Okay, there are lot of videos that he has, but थोड़ी कम प्रैक्टिस करना है तो कम प्रैक्टिस कर सकते हो and you can learn from here. As you can see, I'm not preaching something that I don't do. See, मैंने ये सारे वीडियो देखे, उसके बाद ही हम टेलेंगे कि तुम्हें करना चाहिए. और 30 के 30 देखे. राइट, काफ़ी मतलब 20-30 तो देख ही लिए उसमें से. ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये कर लो नॉर्मलाइजेशन के लिए सेट. ओके. हाँ भाई, पूछ लेते भाई. मेरे से एक इंटरव्यू में 1NF 2NF 3NF BCNF पूछ लिया था 3rd ईयर में, तेरे ईयर में पूछा था, मतलब इंटर्नशिप सीजन में. ठीक है, जिसको पूछना है वो सब पूछेगा यार. एंड नॉर्मलाइजेशन इज़ गुड टू नो उसके लिए यार, तुम्हें पता होना चाहिए. तुम अगर बैकएंड में काम करो तो बहुत काम आएगा तुम्हारे ये सब कुछ. ठीक है. So you get the point. So this is pretty much about CS fundamentals. Any doubts for CS fundamental? I know it is late at night, but yeah, can't help you. I know I'll not get time next weekend, next weekend. Next 2 weeks I'm packed with work. I have my own end term exam coming up. तुम्हारा तो एंड सेम हो गया, मेरा शुरू हो रहा है. ठीक है. सो इसलिए आई हैड टू डू दिस. सो सॉरी अबाउट दैट. ओके. सो या एनी क्वेश्चंस अबाउट CS fundamentals? SQL practice, bro. Next video, like that 4 hours video I told you, right? उसी के next में there is a 2 hour video of practice, only questions. Do that. Just do that. You'll be set. And there is notes attached to it. You don't want to watch the video. Just see the notes, solve the questions. Simple. ठीक है. No need to do lead code of SQL. No need. Just no need. Okay. Now method of solving या condition of normalization. I'll tell you why you should do method of solving also. Like maybe it does not apply to you, Anant, but for you guys, placement guys, right? OT में MCQs आएंगे ना जब DBMS के, they'll ask you to solve normalization in that a lot of times, convert to 3NF, BCNF and all that shit. You should know, that's why. So for seniors, yes, you should know. For second years, maybe skip it for now. And yeah, by the way, for second years, you can skip through graph and DP for now. You can focus on other stuff, right? CS fundamentals remain the same for you, except for the part of normalization. Cool. So that's about second years also. And yeah, I think we're done with CS fundamentals. Yeah, we're done with that. Okay, so now we are going to discuss aptitude, as I mentioned. I think यहाँ पे, let me just go to my own message. Yeah, so just one thing I would like to say that मतलब अब तुम इसको मोटिवेशन समझो, कुछ ज्ञान समझो, जो समझना समझो. बट अभी लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स इन दिस इंटायर प्रिपरेशन जर्नी, राइट, तुम्हें लगेगा यार कि क्यों ही कर रहे हैं भाई ये सब, मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है. आई एम ट्राइंग टू लर्न कोडिंग, वो भी नहीं हो रहा मेरे से. मेरे साथ वाले लोग हैं जो कि कर ले रहे हैं. ठीक है, जब प्लेसमेंट सीजन आएगा विल बी लाइक ये बंदी कैसे प्लेस होगा, इनको तो कोडिंग नहीं आती है, मैं इतना कर रहा था, मेरा हुआ ही नहीं अभी तक. ठीक है, दिस सॉर्ट्स आर वेरी वेरी नेचुरल एंड this is something that happens every year. It's not this year, every year this happens. Okay, and it's completely okay कि ये सब हो रहा है. But remember that all of the efforts you are putting is not to beat someone in the competition. You are just doing those efforts to put yourself up in the competition. Simple है. ठीक है, किसी को हराना एम नहीं, अपना जीतना एम है. इतना याद रखो बस. Don't deviate from that mindset कि मैं किसी को हराने में लगा हुआ हूँ. हो जाता है वो तुम्हारा मोटिवेशन हो, but in reality you are just doing it for yourself. Cool. So if you want to become the person who does not want to see price tags when they go somewhere, right? So don't look at the number of hours you are clocking in a day. ठीक है, जब तुम्हें पैसा नहीं देखना तुम कितना उड़ाओगे आगे जाके, then don't check कि तुमने 8 घंटे कोडिंग करी या 10 घंटे कोडिंग करी या 2 घंटे करी, whatever. Don't do that. ठीक है, तो सिंपल बात है.
जितना काम करोगे उतना आगे बेटर होगा. So don't count all of those things. Just keep doing it. Okay. So next is aptitude, right? Aptitude. This website, India Bix aptitude questions. Yeah, this thing. This is your work. Complete कर लो इसको जब भी टाइम मिले, जो भी टाइम मिले. Just do all of these RT questions. Cool. I'll send the link. Someone please do the great work of doing it and putting it in the coding community. Why I'm telling you, why Rohan, this is not even Insta influence. I'm telling you, this is what I've been keeping in my mind for the past 2 years. This is real. I'm not even kidding. Okay, that is the kind of इंडिया motivation. बिक्स का नहीं, वो डायलॉग का बोल रहा था. किसका आवर्स टैक्स नहीं देखना है तो आवर्स बिना देख के काम करो. हाँ उसी का बोल रहा हूँ. मतलब आजकल बहुत ज्यादा सुन रहा था, बस इसलिए बोला था. नहीं यार, ये तो मैं बहुत पहले से आई पर्सनली बिलीव इन दिस. हाँ ना, बस मजाक कर रहा था. बिकॉज अगर भाई काउंट करने लग गए ना हम, तो फिर तो कुछ अलग ही काउंट निकलेगा. ठीक है. तो एप्टीट्यूड प्लीज सॉल्व इंडिया विक्स. पुट दिस लिंक इन द कोडिंग कम्युनिटी, एनीवन हु इज फ्री. ओके, थैंक यू. So yeah, this is done for aptitude now. I think next is dev. So I think Ilam, if you could step in for dev, like I would say Ilam, if you can, then just talk about how someone who has done zero dev, like कुछ dev नहीं आता, front end में HTML CSS आता है, how can they build a basic backend project, full stack project, at least one of it in their CV. If it can be even a guided project from YouTube or something, but these guys really need at least 3 projects तो होने ही चाहिए सबकी CV में, right? So whatever you recommend, Ilam or Ankit, whatever you guys think, तो बता दो तुम लोग अगर हो यहाँ पे, वरना मैं. हाँ, okay. See, since you just have 2 months and since you're already working on all the DSS stuff, I assume that you will be having less time. Like if I'm talking about the beginners here, okay, who hasn't done any dev. So what you can try to do is, see, generally it would be better if you know front end, back end, everything. But I think it would be better if you focus more on back end rather than on front end. So what I'd say is like learn basic HTML, CSS, okay. And then usually what I suggest people to do is to learn React. Like React is a front end server, okay. And then move towards the back end. But what I would say for the 2 months is that, so there are 2 types of architecture when you build an application. So one is like anyway you'll be building monolithic architecture for your projects. Microservices you will be only working when you are working like a bigger company, okay. So monolithic, there are 2 types. One is 2-tier monolithic architecture, one is 3-tier. So 3-tier is basically you have a front end server, which is like, let's say React or Angular or whatever. And then you have a backend server, and then you have a database. So you send request to the front end server, it proxies the request to the backend server, and then does the processing, relates the request to database, comes back. So that's the 3-tier. For that, you should be knowing the front end framework as well as the back end framework, right? So that's like an extra added layer of work. So I would suggest just try making projects using the 2-tier monolithic architecture. So for this, how this works is basically you just have the backend server connected to a DB, and then the backend server itself can dynamically render the HTML page and serve it to the user, whoever is using the website. So that way you can basically forget about learning the front end server framework, like let's say React or Angular, which if you're trying to learn it in depth, it will take a lot of time. So because most of the times if you're sitting for interviews and if you have projects, companies won't focus on how you manage the context in React. They don't focus that much on front end, as far as I've seen, as far as I've talked to other people and my experience as well. Most people focus on how you have implemented the backend, like how you're storing the passwords, or why did you use SQL database instead of MongoDB, and how you're sending the data, how you're building the API and stuff like that. That's more important rather than the frameworks itself or the language itself, because they want to know that how the application works. They don't want to know what you know about, like what frameworks you know or stuff like that. They just want to make sure that you know what an API is, how things work. So that's why I would suggest you to go this easier way, so that you can save a lot of time in learning. So for this kind of stuff, if you're trying to do, you can basically use something called like usually
what people use, like Stack is the most popular framework for dev usually. Like big tech companies use Java, so they have Spring Boot in the back end and React in the front end and JDB and stuff. But for personal projects and stuff, Mern is like one of the most famous. But Mern, again, like I said, it needs React and stuff like that. So just forget about that for now. Since you're a beginner, try to learn a Python framework like Django or which is easier. Okay, it's easier compared to the other frameworks like Flask or Fast API or something like that. So that can be used for this two-tier methods. It has something called templates where you can store the HTML files, and you can use something called Jinja to render the HTML. It's very easy. I'll just create like a short note or something to give you an idea of how to proceed with it. But yeah, I'm just giving you a rough idea here. So you can try to do something like that and build some basic projects so that in the interview, when they ask about your projects, you'll be able to explain your project. I think like even for my Cisco interview, I had like really good projects. So they had asked about it and asked me in depth about why I did this and why I didn't do that and stuff like that. So if you have good projects, it will be good. I think in some cases, I think, let's say if you are not very confident with the DSA, but if you have good dev projects, you can slowly kind of divert your most of your time to dev as well. In some cases, not all cases, but in some cases you might be able to do that as well. So like if you have decent projects, you'll be able to explain like how you did it and stuff like that, and that should create a good impression for you. So yeah, try to look into this. Learn a Python framework like Django, Flask, or Fast API. And you can use either SQL or MongoDB or non-relational relation database. You should know why you're using it for your particular project, and you should be able to explain why you used it in your interviews and stuff. Okay, so try to do something like this. So it'll be easy for you to learn, because learning front-end framework along with backend is a little tough. It'll take a lot of time. It doesn't. It's not like you prepare today the whole day and then next day you are like a good developer. It takes a lot of time. So that's why I'm giving you this idea so that you can do it a little faster. But like after you do this, if you think you have time, then you can move ahead with front end frameworks and keep exploring. But this is just the basic thing that I'm saying. Cool. Any doubts? One advice: when someone asks you why did you use this technology and why not other, they're not asking what is the disadvantages or what are pros and cons. They're just asking you why did you use it there. Just tell them I like it or not. It's simple as that. Don't try to tell that Python has this disadvantages or this cons, so I'm using this. So what their perspective is, why are you using this and what did you learn? So don't try to tell what is not there in the language and what is there in the language. Another thing, if you are going for a backend project, try to build a notification kind of app or something which you can upload or download files. I'm not talking about use any libraries and build it. Start from the architecture. How does the server contact the client? How does the file get stored? Where is it getting stored? How do you contact it? Do you use API or do you use cloud? So once you have an overview on all of them, you would be able to answer the questions more easily. So again, Lakshay, I guess, so the project idea is better or not, it depends on how you explain them the project and what is the use of it. So even if it's a small project, maybe a rhyme telling thing, if it can be used worldwide for the nursery people, it makes more lot of sense than something high level project. So before making a project, think how you can put it to the interviewer and what is the reason for you to make the project. It's more important in a way also. Correct. Yeah, I think that makes a lot of sense to me. So I think guys, you heard from the best. Ilam, Ankit, and all of these guys are very very good at dev. Okay, and if these guys are saying something, it means a lot. Okay, so I want you guys to take their word for it. And अब मैं बताता हूँ, इलम जो भी समझा रहे हैं ना, वो तुम जिस सिचुएशन में ना, मैं वही हूँ. ठीक है, मेरे को नहीं आता था डेव. अभी भी मैं बोलूँगा नहीं इनके सामने कि मुझे आता है, बट दैट इज़ वॉट आई डिड. मैंने अपने लैब में जैंगो सीखा, मैंने खुद जैंगो सीखा बाद में. जैंगो में प्रोजेक्ट बनाया, डाल दिया, ख़त्म. मेरे को नहीं करना था नोट जेएस, मैंने नहीं किया. मैंने आज तक हार्डली 1-2 बार नोट जेएस किया है. ओके, सो बट यू सी द पॉइंट. अरे यार ठीक है, होल्ड ऑन, आई टेल यू व्हाई आई हैव नॉट आस्क्ड यू अंकित. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट वेब डेवलपमेंट कि हम लोग जैंगो कर सकते हैं यहाँ पे.
बट अब दो केसेस और बचते हैं. पहला ये कि तुम अगर ऐप डेवलपमेंट या iOS डेवलपमेंट कर रहे हो, दूसरा अगर तुम मशीन लर्निंग कर रहे हो. व्हाट डू वी डू इन दीज थिंग्स? एक बंदा बोला ML वाला अभी, तो तू जो बोला ML वाला बंदा भाई पाइथन में कर रहा है ना, जस्ट गो टूवर्ड्स Django एंड यू नो पाइथन, जस्ट गो विद Django. ठीक है, डोंट फिल योर CV विद ML प्रोजेक्ट्स कि तुम बिल्कुल इरिलेवेंट हो जाओ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से. डोंट डू दैट शिट ऑल्सो. ओके, नाउ फॉर ऐप डेवलपमेंट एंड iOS डेवलपमेंट, Ankit Mishra would like to say a few words. Please, Ankit. I don't know, like इसमें कुछ बताने वाली कुछ चीज ही नहीं नहीं है. मतलब The tell me same one thing thing, like if what we someone does Flutter and all of this stuff, right? So what kind of projects are they expecting? Like, because app can be as complex as it gets, and we are not focusing on backend here. So what do we do in these cases? What can be a good practice project or something? see the best practice. What I would say is like, app development में you have lot of options starting from Java for Android or iOS for Flutter. The first thing that's most important and eye attracting is उसका skills सीख लो. जैसे अगर कोई Swift सीख रहा है अभी, so Swift का there is something called as ML kit and AR kit. वो सीख गए ना, so like everyone will be impressed that yeah, you are a good iOS developer and you should be recruited. Correct. थोड़ा out of the Yeah. box from usual, right? हम्म. Makes sense. जितना like internally सीख पाओगे, for example Android in Java or Flutter, iOS, Swift, so yeah, that would be good for you. And if you also learn to like क्या कहते हैं, if you also learn to control like to integrate different kind of backends in the front end now, so that will be the best of the best option, so that you can show it in the project. And one more thing, मैंने like outside the app development or web development or ML project, whatever you are going for, most of the interviewers, like senior, अगर by any chance management level में चले गए, or there is something called a senior executive level, and they saw your projects in CV. So what they want to see, okay, yeah, they, as Rohan said, like they will ask, why did you choose this tech stack? It's fine, okay. But one more thing they can ask, like they asked me in my Cisco interview, like what was the uniqueness factor of the project? Like how is it different from other app or web developed over here? तो उसमें explain to करना पड़ेगा. And you like whenever you are making a project, like अभी I know there are second years in the, ये भी सुन लो. So whatever lab projects you are making on external projects you are making on कोई भी hackathon का कुछ बना रहे हो, so yeah, just think about like one to unique feature you can work on. Lab project में भी काम आएगा, as well as in your CV and in interview. That's it. Yeah, I think that is some pretty great advice coming from Ankit, right? And like, okay, someone was asking for examples, right? So I'll tell you an instance. Okay, yeah, I think Rohan is also right. कि DSA and DEP में whatever difference is, you can read about it. So what I'm saying is that for instance in first year I went to a hackathon. Okay, obviously first year I only knew HTML and CSS. So we were trying to make a medical supply availability portal. So that was the time when तुम लोग कॉलेज में थे भी नहीं. So this was the lockdown time. Okay. So obviously I did not know backend. So I wanted to fetch data and show it on the web page whatever we have, right? So to do that, I created an Excel sheet which became my database, and from that I was scraping data from all the government websites that are present in the country, and that was my database. Okay, and then I was implementing the view of it on the website that I had using HTML, CSS and Bootstrap. Now this seems like कि भाई क्या ही बनाया, Excel, HTML, CSS, but it's not about what you make, it's about how you describe and how unique it is. For a person who does not know backend, the easiest way to, the thing to do is give up. कि भाई नहीं आता backend नहीं कर सकते. But if you find a way out with the existing resources, that is something that makes us an software developer. ठीक है कि जो resources नहीं है, जितने resources है उतने में तुम क्या कर सकते हो. So in one of my interviews I told him about this project. So I described कि we were working on a cutting edge this that medical supply availability portal. We utilize the tech stack of HTML, CSS, Excel. Okay, then that guy was like, make the architecture of the project. The architecture, there is no architecture to begin with. So as my box बनाया, I'm like Excel ये. So the point that is impressive about it is not कि UI बहुत अच्छा है या it's real time availability या इतना अच्छा backend है कि 0.1 millisecond में आ रहा है response. It's not that. The point is that you are able to apply whatever you know right now in a very unique manner to solve problems that already exist. Okay, sometimes these things also matter. So when you are presenting a hackathon project, it's not about a tech stack or something you have worked on. It's about why you did so and why it is so unique. Okay,
why is it something better than what other people are doing? That is what should be the focus. It's about how you are selling it. There's nothing more value attached to it. Okay, so I think selling your projects is one another thing that people usually don't talk about. It is extremely important. Okay, so like whenever Mantra and functionality get a UI design, whenever you're going to an interview, obviously this happens a lot. Okay, so this is very usual because हम host नहीं करते projects, we can't show the UI, right, but we can describe the architecture. That is important. Okay, so whenever I describe my project, I'm like, so we are working on this particular solution. I was working on a SEO Google Chrome extension, which was helping everyone scrape data from different websites. Now, why is it unique? What makes it unique? SEO analysts having a little less knowledge about coding are not able to write Python scripts for this. To solve this issue, we came up with the tech stack of jQuery and all that to resolve and build this Google Chrome extension with a clean UI for the SEO analyst to be helped by this tech thing or whatever thing. Okay, so we are trying to show कि एक problem है, हमें अपने resources लिए उसको solve किया and we had a good ending to it. That is how your story should go whenever you're describing a project. Okay, so this is for people जो basic projects बना रहे हैं, not hi-fi thing stuff I'm talking about here. Okay, so okay, dev हो गया I think. Internship, internship, if you have already done an internship, please talk about it properly. Okay, at least write 3 bullet points about internship that you have completed. ठीक है, थोड़ा relevant बनाना उसको to whatever work you are working on. ठीक है, now we come to projects we discussed right now. CV, we sent a format, but there is apparently some confusion with the placement department on what format to use, so please get that fixed. Please understand क्या है. Personally I do not prefer that format, it's just not fitting right to me, but अगर वो force कर रहे तो कर लो, इंटरव्यू के टाइम पे चेंज कर लेना, क्या फ़र्क पड़ रहा है. ओके, एंड HR में प्लीज़ बेसिक HR क्वेश्चंस तो प्रिपेयर कर लो यार. स्ट्रेंथ वीकनेस, नाउ आई आस्क समवन रैंडमली आउट हियर स्ट्रेंथ वीकनेस बताओ, नो वन इज एबल टू टेल. ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी. ओके, so to if you want to practice all of these things, we do have I'm like right now we have stopped it, but like let's see, in the next 10-15 days we'll be starting with mock interviews again. Okay, and in those mock interviews, whatever things I mentioned today, we'll be questioning all of those things, and we'll at least I'll be taking honestly for that, and I'll be giving detailed feedback on whatever is required for the same, because I feel that आधे लोगों को तो इंट्रोडक्शन देना ही नहीं आता है. इंट्रोडक्शन देना सिखाना पड़ रहा है मुझे लोगों को बहुत बार. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सब आता है और बोलने में दिक्कत हो रही है खाली इंटरव्यू में. सो विल ट्राई टू रिक्रिएट दैट सिनेरियो फॉर यू. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन लेट मी नो, we'll have it for you also. Okay, so yeah, I think that is pretty much everything that I have from my side, even from the PPT that I sent before. Yeah, as you can see, I told you C++, 350 to 400 question, lead code contest, right? Everything that I told you is here. So nothing much. And if you wanted to see पैसों के हिसाब से, how this is something that is making just my way to forcing you to do topics. ठीक है, no person in their right mind would say कि मेरे को ये चाहिए. Every person would at least say कि मुझे ये चाहिए. So in that way, at least we'll cover all of this stuff that is present here, right? But yeah, I think at least this should be a focus. इतना तो तुम्हें करना चाहिए. ठीक है, इतनी मेहनत करोगे तो इससे कम एम मत करना. Okay, and yeah, I think we talked about this also. We talked about CS fundamental also. And yeah, it's not DSA versus dev, it's DSA and dev. I think we got a lot of clarity about it. You'll need to know one backend framework to impress the interviewer, as Ilham said that, right? So I think we all are saying the same thing, so there is something that is correct in this. Okay, so yeah, I think we are done with all the topics that we had aimed for today. But yeah, Ayush, do we have any questions in the Google form by any chance, or सब यहीं पे आ गए questions? Yeah, Ilham, you also took the access, right? Any idea? We'll have to check 1 second. I don't think I have access right now. Okay, anyone posted a question क्या Google form में? Okay, तुमने यहाँ पे डाला है. Okay, 17 questions. Okay. Time according to topics दे हो गया. हाँ भाई, ये जो लोग हैं ना, इन लोगों का तो कुछ होना नहीं है ज़िंदगी में. Yeah, that was me. My bad. हाँ, बस That तो was ये me. है. ठीक है. फिर प्लेसमेंट रिसोर्सेज टॉक्ड अबाउट इट. इंटर्नशिप के साथ क्या क्या करें, टाइम मैनेजमेंट बता दो एक बार. वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, मान लो तुम्हारी इंटर्नशिप चल रही है 6 घंटे. ठीक है, 10 से लेके 4 बजे तक. ठीक है, वेकअप सुबह सुबह, ट्राई टू लर्न CS फंडामेंटल सुबह सुबह फ्रेश माइंड से. 2 घंटे बैठो, OS CN जो भी पढ़ रहे हो कंप्लीट करो. जैसे इंटर्नशिप खत्म होता है 1 घंटे ब्रेक लो. सिट फ्रॉम 6 o'clock 6 to लेके 12 और 1 लगातार 6-7-8 घंटे बैठ के कोडिंग करो. बस, नो टाइम लाइन, नो टाइम मैनेजमेंट, यही है बस. ठीक है, नथिंग मोर टू थिंक अबाउट इट. यू गेट माई पॉइंट. ठीक है, तुम्हें इंटर्नशिप के बाद जो भी टाइम मिल रहा है तुम्हें उसको करना ही पड़ेगा. ओके 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 या सो यू गेट माई पॉइंट. तुम्हें 6 घंटे एम करना ही है कोडिंग, कैसे भी निकालो अब तुम उस चीज़ को. ओके,
Will it going to be too tiring? Yes, bro, it is going to be very tiring. ठीक है, I used to be on a 4 hour sleep when I was doing internship and placement prep together, and I think it is all worth it at the end. So you can do it. ठीक है, कुछ रोकेगा नहीं तुम्हें. No, it's not about tiring also. Like you will come into that phase like where you will lose your motivation. हाँ, ये भी होता है बहुत बार, मोटिवेशन गिरेगा ऑल ऑफ द. मैं वही बोल रहा हूँ ना, एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेशन बहुत सिंपल होना चाहिए यार. तुम जो भी कर रहे हो, राइट, इट्स टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ योर्स एंड योर फैमिली एंड एवरीथिंग. थिंक लाइक दैट, यू विल ऑलवेज हैव मोटिवेशन टू वर्क. ठीक है, कोई बंदा या बंदी तुम्हारा मोटिवेशन नहीं होता है. वॉट एवर यू, तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे इतनी फीस लगा रहे, ये सब लगा रहे, दैट शुड बी अ मोटिवेशन ऑनेस्टली. ठीक है, मेरा तो वही है, तुम्हारा भी वही होना चाहिए. ठीक है, But don't wait for others to motivate you. या खुद कोई और motivate मोटिवेट करते नहीं रहो. करेगा. वेरी ट्रू, तुम्हारा अपना ही है ये जो भी है. तुम्हारे मम्मी पापा कभी आके नहीं बोलेंगे कि बेटा 2 घंटे सो, बाकी टाइम कोडिंग करना है. वो दे ऑलवेज से यार सो ले, उसके बाद कोडिंग कर लेना. बट इफ यू आर द पर्सन, राइट, उसको अंदर अंदर से एकदम आ रहा है कि नहीं करना है, यू विल बी द वन, नहीं चलो थोड़ा कम सो ले लेते, कर लेते हैं. ठीक है, बहुत है भाई. पहले 1 महीने में प्लेस हो जाओ, 3-4 महीने सिर्फ पार्टी करके सोना है, कुछ काम नहीं होगा कॉलेज में, तो बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा. ठीक है, पार्टी ही करते घूमोगे, बस अभी कर लो काम. ठीक है. How to get a referral? Should I just LinkedIn message? Yes. If you want a referral, get a good CV, frame a good message of a paragraph of why you are a better, good candidate for the job. Then preferably MIT alumni. Yes, it's easier to reach out to them. But अगर कोई openly बोल रहा है referral मांग लो, तो उससे पहले referral मांगो. Okay. Another point here. अगर कोई company on campus आती है ना, just go and connect with all of the alumni of our college or any other college that are present in those company. कि तुम्हें कोई question है तो you can reach out to them. Cool. Always do that practice. Very good practice. ओके. और कोई कंपनी आती है तो एटलीस्ट हमें बता दिया करो, हमारे ही दोस्त होंगे हो सकता है कंपनी में. इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड, भाई कंपनी टू कंपनी बहुत मैटर करता है. लाइक इंस्टेंस यू आर इन JP Morgan, मोस्टली विल गेट कन्वर्टेड. SAP Labs मोस्टली विल गेट कन्वर्टेड. Amazon बहुत बहुत डिपेंड करेगा. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट कन्वर्टेड राइट नाउ. लाइक इफ यू हैव डन वेरी एक्सट्रीमली गुड इन ऑल ऑफ दैट, मे बी येस, बट it is a little difficult. Cisco, there was 100% conversion in our time. Okay. जैसे तुम लोग कंपनी का नाम बताया, इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर मी टू टेल यू. बट या देयर इज अ गुड चांस. बोइंग में 100% कन्वर्जन है, राइट. ऑल ऑफ दिस कंपनी गुड. हमारे टाइम पे कन्वर्जन अच्छे हुए थे, बट इस टाइम बोल नहीं सकते कुछ यार, मार्केट थोड़ा सा अजीब सा है अभी, राइट. शुड आई फॉलो स्ट्राइवर, DSA कोर्स, एनी अदर कोर्स? ब्रो, स्ट्राइवर की शीट से क्वेश्चंस करने हैं, कोर्स तो किसी का ही फॉलो कर. तेरे को टॉपिक पे फोकस करना है, कोर्स कुछ नहीं होता. हमने किसी को पैसा नहीं दिया है, ठीक है. हमें जहाँ से समझ आएगा हम वहाँ से पढ़ेंगे. तेरे को एरे स्ट्राइवर से समझ आ रहा है, स्ट्राइवर से पढ़. लब बबर से समझ आ रहा है, लब बबर से पढ़. ठीक है. डोंट डू कि हम क्रिएटर्स के बीच में फाइट करेंगे कौन सा. नथिंग. जिसको जहाँ से समझ आ रहा है वहाँ से पढ़ो. क्वेश्चन सेम ही है सारे वर्ड. ठीक है. My offline internship was 1 month and will get by mid-June. Perfect. How to proceed with it? I observed that like the toughest of the DSA questions will be lesser when compared to OT. Is it true? Toughness of the, okay, lesser. Yeah, this is true. So offline internship 1 महीने की, no problem. Starting में तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगा, but at least try to do before trees or till trees in that 1 month. Okay. Apart from that, toughness of the DSA questions, yes. OT में there will be much more difficult questions. That's why I want you to do lead code contest so that you get a hang of it. Okay. My branch is CC and CTP is just above 7. How good are my chances of getting a 12 LPA package DSA alone in 2 months? How do we know development for what's happening? Yeah, to people who barely know anything. Cool. Whoever this person is, right? CC है, मस्त है, सारी कंपनीज में मोस्टली अलाउ करती है, नो प्रॉब्लम्स विद दैट. ठीक है. अभी अंकित एंड नीलम, ऑल दीज आर गाइस आल्सो डूइंग वेरी वेल. 7 के ऊपर है, कोई टेंशन नहीं. इस बार भी 7 के ऊपर रह जाए, बहुत अच्छा है. 12 लाख इजी पीजी. 10-12 लाख के ऊपर, 7 लाख के ऊपर, 7 के ऊपर CG पे ही मांगती है, उससे ऊपर नहीं मांगेगी ज़्यादा. ठीक है. तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. डोंट सेल आउट योर सेल्फ फॉर लेस. ठीक है. DSA अलोन इन 2 months आराम से होगा. वॉट एवर आई टोल्ड यू द प्लान, राइट. एटलीस्ट डू इट विद ट्रीज तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, whoever this guy or girl is. Okay. Then development of people who barely know anything. You text me, I'll tell you, I'll send you the course on Telegram. Do that course. ठीक है. Django level 1, 2, 3, 4 है, एक प्रोजेक्ट है, उसमें बना लो. You will at least know Django framework properly using HTML CSS as template. What's the approx percentage of consulting a business analyst company in placement? How to get referrals? Okay. First question, business analyst companies. There's a decent amount of companies. I would say 10 to 15 companies जो आती है उसके लिए. But it's not purely business analyst. There is a lot of SQL and all of that also involved. Okay. How to get referrals? भाई LinkedIn. No other way out. ठीक है. लाइक तुम्हारा कोई जान पहचान का तो सही है, मतलब मोस्टली LinkedIn पे ही रीच आउट करना पड़ेगा तुम्हें. DSA को लाइक फर्स्ट वी हैव टू वॉच द वीडियो सोल्यूशन और ट्राई. आई थिंक वी आंसर दिस क्वेश्चन 10 से 15 मिनट. अगर कोई जेन्युइन एरर है और 10-15 मिनट, वरना रिफर डिस्कशन, देन रिफर यूट्यूब. ओके. कोल्ड ईमेल्स,
कोल्ड ईमेल्स का ज़माना काइंड ऑफ चला ही गया है आजकल, मतलब लिंक्डइन इज द न्यू कोल्ड डीएम ही चल रहा है आजकल। Core mails are still working. I saw people getting. I mean, मतलब more than तुम्हें a हायरिंग मैनेजर को करोगे तो सेंस बनेगा, पर तुम रेफरल के लिए कोल्ड ईमेल कर रहे हो तो नहीं हाँ, चलेगा। In that हायरिंग context. मैनेजर डजंट वर्क एट ऑल। हायरिंग मैनेजर के साथ जो होते हैं ना कि रिलेटेड इंटरव्यूअर्स, उसको correct, करना correct. पड़ता है। तो तुम रेफरल्स के लिए कोल्ड ईमेल नहीं कर सकते हो, बट तुम अगर तुम ये सब चीज़ों के लिए करना चाह रहे हो ना, ओपनिंग्स के लिए, देन यू कैन गिव इट अ शॉट। बट यार आई डोंट सी द पॉइंट ऑनेस्टली। लाइक मणिपाल 200-300 कंपनी लाने वाला है, तुम्हें करना क्यों है अभी? ठीक है, अगर कोई जेन्युइनली कोई कंपनी ऑफ कैंपस अप्लाई करना है तो रेफरल ले लो, अगर वो ऑफ कैंपस नहीं है तो वेट करो ऑन कैंपस कंपनीज की। अच्छा, one more thing to note by the way. जो भी कंपनीज आ रही है लाइक मणिपाल में यूजुअली आई मीन जो भी लाइक एलुमनाइज होंगे वरना रेफरल के लिए कोई जान पहचान होंगे, उनसे रेफरल मांगना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज द कंपनी जस्ट केम टू मणिपाल। इस साल बहुत खराब है, जो भी कंपनीज आए थे, स्टार्टअप्स भी आए थे, एवरीथिंग मिक्स्ड अप। सो मेक सम गुड चॉइस, डोंट टेक लॉट ऑफ रिस्क, हैव ए बेसलाइन कि इतना सैलरी आना चाहिए एंड दिस शुड बी अ लेवल ऑफ कंपनी आई वांटेड टू गो। या बहुत ज़्यादा हार्श डिसीजंस मत लो खुद के लिए कि यार मेरे को 15 लाख से ऊपर चाहिए वरना नहीं लूँगा। थिंक प्रॉपरली कि मार्केट कैसा है। यू कैन ऑल्सो चेंज, यू कैन ऑल्सो गेट ए गुड कंपनी इवन आफ्टर 1 ईयर, बट अगर अभी नहीं गया तो यू विल बी जॉबलेस फॉर 1 ईयर, CV will be blank, then you won't even get 10 lakhs का salary even after 1 year. So think properly before making any hard decision. आई थिंक आई एग्री विद दैट यार। मतलब मी एज अ पर्सन विल नेवर टेल यू टू एम लो इन लाइफ। ठीक है, मैं तो हमेशा बोलूँगा पैसे छापो 20-30 लाख वट एवर इट इज़। ठीक है, बट राइट नाउ जैसा मार्केट चल रहा है अभी, ही इज़ राइट, यू माइट हैव टू गो फॉर अ लिटिल लेस देन वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। वॉट एवर इट इज़, अ लिटिल लेस, आई एम नॉट वेरी लेस, कहीं भी बैठ जाओ। ठीक है, बट देर इज़ अ हाई चांस कि ये थोड़ी दिक्कतें होंगी अभी, एंड इट्स ओके, ऑनेस्टली इट्स ओके। ठीक है, मेरे लाइक आई आस्क माई सीनियर्स, जो मेरे हैं, मेरे से सीनियर है, दे टेल मी दैट यार देखो हर चीज़ का बूम होता है। जब आईटी इंडस्ट्री का बूम होता है सबने पैसा छापा। ठीक है, आज थोड़ी आईटी इंडस्ट्री गिरी है तो लोग नहीं छाप रहे, फिर से बूम आएगा 1-2 साल में फिर लोग छापेंगे। तो ऐसे ही होता है यार, अप डाउन चलता रहता है थोड़ा बहुत चीज़ों का। बट अगर हम लोग उस पॉइंट पे आए जब डाउन है तो वी कांट रियली डू मच अबाउट इट। बट या वॉट एवर अपने हाथ में हम लोग कर रहे हैं राइट। इतना कॉन्फिडेंस रखो, जितनी पढ़ाई कर रहे हो ना उतना तो लेके निकलो, सिंपल बात है। अगर तुमने एफर्ट नहीं डाला ना फिर कभी मत मांगना कि मुझे इतने लाख चाहिए। अगर तुमने एफर्ट डाला है तभी हक से मांगो और हक से सोचो इस बारे में। एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो, सोच रहे हो मिल जाएगा, सबको मिल जाता है क्योंकि ठीक है, आई हैव सीन पीपल टेलिंग कि हाँ भाई 10 तो लाख तो मिल ही जाएगा, 12-15 का बताओ, मिल ही जाएगा। व्हेन यू गेट इनटू द प्रोसेस यू रियलाइज हाउ डिफिकल्ट दैट इज ऑल्सो। ठीक है, 40-50 लोग 100 लोग बैठते हैं इंटरव्यू के लिए, 2 लोगों का होता है जब ना, तब पता चलता है कितना आसान है। Best example हमारा बैच है। You हमारा people batch है। sit more than 250 and 2 people are getting selected. मैंने देखा है वो, लाइव देखा है अपनी आंखों के सामने। दैट्स व्हाई आई नो इट्स नॉट इजी। And there are also, हमने जब घर आ गया था, people called back to Manipal for interview and they selected no one. So people literally went from home to college to not get selected. बहुत हुआ है। आई नो दैट वाज बैड, एंड यू नो गाइस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज रियली होपिंग फॉर माय प्लेसमेंट सीजन तक चीज़ें सही हो जाएंगी, बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग राइट टू मी अभी भी ज़्यादा। ठीक है, सो जो भी है विल डू समथिंग अबाउट इट, जो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बट आई टेल यू ऐसा नहीं कंपनी आना बंद हो जाएगी, अभी बहुत अच्छी कंपनी आएगी। इफ़ यू हैव द टैलेंट राइट हो जाएगा। तुम कॉलेज के टॉप 10 कोडर में आ जाओगे 2 महीने में ना, कोई तुम्हें नहीं हरा पाएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है, कि कितने लाख की कंपनी आ रही है, एक कंपनी भी आ रही है ना अगर अच्छी हो तो उसमें भी हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल बात है। कीप दैट माइंड सेट आई वुड से। ठीक है ना। मैं तो अपने साथ वालों को देखता हूँ यार, आई नो पीपल यार, मैं ऐसे इलम को देखो, अंकित को देखो, दीज गाइज वेरी वेरी गुड यार। दीज गाइज डिड इंटर्नशिप्स, दे गॉट PPO ऑल्सो, देन दे वांटेड टू गेट प्लेसमेंट, दे गॉट प्लेसमेंट वेयर दे वांटेड। अगर इतना इम्पॉसिबल होता दीज गाइज ऑल्सो वुडंट हैव डन इट राइट। तो अगर हम सब ने किया है तो कुछ चांस तो है, देयर इज अ 1% चांस, बट देयर इज अ चांस राइट। बस फिर उतना काम करो और वहाँ पहुँच जाओ, नथिंग मोर थिंग। ठीक है, Don't expect everything to be fair. या फेयर भी नहीं होता, वेरी ट्रू। कि मतलब तुमने जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा किया है, कोई तुमसे कम करने वाला भी हो जाता है, टोल्ड यू बिफोर, वो भी होगा। इट्स ओके, लाइफ है भाई, होता है। ठीक है, सो या आई थिंक और Q&A में एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट क्या? 1 सेकंड कॉल। विल प्लेसमेंट बी टफ विदाउट सेमेंट? नो यार, नो, नथिंग लाइक दैट आशीष, इट विल बी ऑल ओके। कोई भी इंटर्नशिप करी अगर तुमने ना, और इंटर्नशिप अच्छी नहीं है, काम की नहीं है अगर ज़्यादा, तो प्रोजेक्ट अच्छा बना लो। टेक 5 प्रोजेक्ट्स विद यू इन द इंटरव्यू, एक CN, एक OS एंड एक फुल स्टैक, एक फ्रंट एंड, और एक कुछ हैकाथॉन या कुछ अलग सा एकदम ऐसे तूने बनाया तो कर ले। तो 5 प्रोजेक्ट लेके जाएगा तो इंटर्नशिप की कोई कमी नहीं खालेगी तुम्हें इतनी। ठीक है, And JD पढ़ ले भाई पहले अप्लाई करने से। हाँ। ब्लाइंडली सारा कॉन्सेप्ट मत पढ़ के जाओ, कंपनी क्या है उसमें क्या पूछ सकते हैं, ट्राई टू
Yeah, make narrow some down. research before. Whenever you get an interview, भाई इंटरव्यू एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं है, लिंक्डइन पे लोगों से पूछो क्या पूछा था आपसे, ऐसे पूछो लेजिट. ठीक है, हाँ जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन है बाय द वे. तो मैं तो ये करता हूँ काफ़ी ज़्यादा. इंटरव्यू एक्सपीरियंस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, राइट. सो फोकस ऑन दैट. बट आई थिंक आप तो वहाँ पहुँचने में देर है तुम्हें. ठीक है, जब तुम्हें पहली कंपनी आएगी तब देखेंगे वो. बट या pretty much everything I told you about the placement preparation talk आज. ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस कि आप सब लोग यहाँ पे रुक गए. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लोग रुकेंगे ऑनेस्टली. ठीक है, बट या ऑल ऑफ द गाइज प्रेजेंट हियर, यू हैव शोन एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड आई होप इट बियर्स यू गुड फ्रूट्स इन योर प्लेसमेंट सीजन. ओके, एंड या जस्ट वन स्मॉल थिंग. ओके, वॉट एवर डिसीजंस आएंगे ना कि तुम्हें 6 लाख लेने हैं, 10 लाख लेने हैं, 20 लाख लेने हैं, प्लीज़ try to involve your parents in your decision making. Okay, because these are the guys who are funding you एक तरह से. So at least be answerable to someone. तो हमने दोस्तों से डिस्कस नहीं करना चाहते, किसी से डिस्कस भी. उनको बताओ तुम क्या कर रहे हो. कंपनी आई, टेल देम कि कंपनी आई. ठीक है, तुम कहीं बैठ रहे हो, टेल देम तुम वहाँ बैठ रहे हो. देखो तुमने मतलब मैंने तो ये लाइन कहीं सुनी थी यार. देखो क्योंकि हर बार हर बंदा तुम्हें सही गाइडेंस नहीं दे, ज़रूरी नहीं है. बट यार इंटेंट एक चीज़ होती है. ठीक है, तुम्हारा साथ वाला तुम्हें कॉम्पिटिशन के चक्कर में गलत गाइडेंस देते हो सकता है, बट तुम्हारे पेरेंट्स का भी इंटेंट गलत नहीं होगा उनका, राइट. सो यू कैन ऑलवेज रिलाई देयर. दैट इज़ अ क्वेश्चन. तुम इंटरव्यू में फेल हो गए, अगर कुछ हो गए, जाकर तुम रोगे सबसे पहले वहीं पे. तो एटलीस्ट टेल देम तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, इंटरव्यू आ रहा है, ओटी आ रहा है, तुम बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो, क्यों नहीं बैठ रहे हो. सो यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम, यूटिलाइज इट. ठीक है, यू मेक गुड यूज़ ऑफ इट. ठीक है, एंड दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, राइट. सो प्लीज़ यूज़ दैट प्रॉपरली. एंड आई थिंक आई रियली होप यू ऑल डू रियली वेल. ठीक है, हम तो चाहते हैं यार सबका प्लेसमेंट हो जाए, आ जाओ बैंगलोर पार्टी करेंगे. ठीक है, तो आई रियली वांट दैट टू हैपन. एंड आई थिंक बाकी सब तो डिस्कशन कुछ चल ही रहा है चैट में. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट एंड आस्क और आस्क इन द चैट. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द मीटिंग. आई होप यू हैव अ गुड डे टुमारो. या हाँ भाई, प्लीज़ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो. और हाँ, एक और चीज़, जाके मणिपाल में बाइक मत चलाने लगना. चुपचाप बैठ के प्लेसमेंट में काम करना. प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद भी कुछ मत करना है उल्टे सीधे काम. हाथ पैर मत तोड़ लेना. ठीक है, जाके तुम्हें कोडिंग हाथ से ही करनी है वहाँ पे. ठीक है, तो ये सब काम कुछ मत कर देना. ओके, चलो सही है ना. या ब्रो, या अनिश, श्योर. आई थिंक अंकित विल बी द योर गाय फॉर दैट. आई ऑलरेडी हैव सम रेज्यूमेस टू रिव्यू. आई थिंक संदीप का है मेरे पास अभी. So I think Ankit, you can send it to Ankit for now. Yeah, thank you Ankit. And yeah, I think perfect. और I think कुछ मणिपाल बैंगलोर वाले भी, if you guys have any other specific question पूछ सकते हो तुम भी. Okay. So yeah, all good stuff. चलो then I think let's call it a day. Any other question भाई? अरे हाँ भाई, बस हाँ भाई, इन लोग की बात करो भाई, हम नहीं. ठीक है, चलो. हाँ भाई आनंद समझ गया भाई, समझ गया. लग रहा तेरा एंड खराब हो गया. तेरा एवरीथिंग क्लियर. थैंक यू सो मच. ओके, या ये खराब करके भी 9 ला रहा है. हाँ भाई, आनंद की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए. Yeah, I think I'll get this recording to you guys. I'll stop recording now. Okay.